Namaskar. Namaskar to all of you. And as you can see, today we are into chapter 7, LMR session, area under curve. It's a fine thing and cash rich hai. So you can finish off in an hour revising the entire thing by working the sums, and you get no cash rich 4 marks to no 5 marks in your exam. One sum 4 marks and 1 or 2 MCQs to रहेगा ही रहेगा. So let's do this. Area under the curve. So let me just give you the start to that. Let us say in the system, in the Cartesian system, I have my function. No, this is my y some function of x. And I'm bounding it by the two intervals x equal to a, x equal to b. And we have got x-axis. Now, if I integrate my function, if I integrate, or maybe let us say, I'll say, if I integrate y, of course, with respect to x from a to b, I happen to get this area. What area? This area. Area bounded by the four things. Fourth thing, very important. Area bounded by the curve, the function, the two lines x equal to between which you are integrating your function, and the x-axis. चौथा चीज बहुत important है. People miss out this last thing. It gives you the area, so I'll say the A is equal to A for area. A is equal to integrate A to B y dx. Student चैप्टर 7 में यही लेके जाता है रिक्शा में, माने जिसमें भी जाता है वो जाता, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में है. बधा को मेरा नमस्कार. It's a cameo topic, so let's do it in a beautiful way, but sometimes can hurt you, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है आपको. They ask you one sum and then it is coupled with some other topic ka sum, so maybe you have to skip out, but this is not worth skipping. Money, you lost the discount given to you. When you integrate y from a to b, you happen to find the area under the curve y between the two lines x equal to b, between which you are integrating, and the x-axis. माना आपका एरिया ये है up till the x-axis. So everybody just keeps a note up till the x-axis. So if at all हमारे sum में हम x के नीचे जा रहे हैं in covering the total area, you will have to think some other ways to cover that area or to account that area. देखेंगे जैसे ही आगे जाएंगे वैसे. बट ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ. सर से क्या बात कर, हाँ इतना ही है. A is integrate a to b y dx. You're finding the area under the curve y between the two lines a and b and the x-axis up till the x-axis. Now coming back, इसके अंदर पैराबोला की चर्चा बहुत होती है. So yes, your syllabus also talks about circle and ellipse, but I would put it only for MCQ. Now I have got a backing of almost 8 to 9 papers, so I got it and I knew the reason for that. Later on बात करते, पैराबोला की बात करते. So when you hear something like y square equal to something x, you heard the sound y square equal to something x, it's a parabola. Symmetrical about the positive x-axis. When you hear the sound y square equal to something x, it's a parabola. Symmetrical about the x-axis. Vertex at the 0. But when you hear the sound x square equal to something y, पहला साउंड था y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x. मैं यहाँ लिख के रखता हूँ ना. नाउ यू आर लिसनिंग टू द साउंड x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग y. तो मैं ये कभी याद नहीं रखता, मैं वो एक पकड़ के जाता है y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x. नाउ इफ समबडी सेज x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग y, तो आई गॉट इट कि उसने x को y बनाया, y को x बनाया, माने पूरा मेरा कार्टेशियन सिस्टम 90 से रोटेट हो गया. x एक्सिस गोइंग y एक्सिस गोइंग x एक्सिस, माने आप आपका पैराबोला ऐसा हो जाएगा. That's your x square equal to something y. Because if I remember both, now I'm talking about my personal limitations. Y square equal to something x square equal to something y, दोनों लेके गया, दोनों ही गिर गया रिक्शा में से, हॉल तक पहुंचा ही नहीं मुझसे. So I carry only one parabola y square equal to something x. Live, if they change it to x square equal to something y, I was smart enough to hear that thing, they have changed my x to y and y to x. That means the whole system has turned by 90 degrees.
मैं भी घूम गया 90, मैं नहीं, मेरा सम घूम गया 90। उसकी चर्चा हम करेंगे जब सम आएगा तब। एवरीबॉडी इज रेडी नाउ। चल सब लोग तैयार। ओहो हो, फेब 25 में ही सबको मारा नमस्कार। आज पता नहीं दिल कर रहा है बार बार नमस्कार। फेब 25 का सम है, जुलाई 24 में आया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to something x. So parabola. Okay. So I've got a parabola y square equal to 25x. बिफोर कोई पूछे कि क्या ये डायग्राम जरूरी है, नहीं, मगर आप बनाना, देख कैसा टेढ़ा मेढ़ा बनना है, ही अप्रिशिएट्स। x इक्वल टू 4 है, कटिंग x एट 4, x इक्वल टू 0 है, इट्स अ स्टैंडर्ड पैराबोला, वर्टेक्स इज 0। अब वापस पढ़ने का, आई कैन सी दे आर आस्किंग मी दैट एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन x इक्वल टू 4। मैं तो रिक्शा में एक ही चीज ले गया था, a इज इंटीग्रेट a टू b y dx, इतना तो कोई भूल नहीं सकता। सम में देखा तो इंटीग्रेट 0 टू 4 y dx। तब अचानक मैंने खुद को एक टपली मारी, ये तो खाली x तक देगा ना, ये तो मुझे खाली इतना देगा, बाकी का कौन लाके देगा, बाकी का 2 टाइम्स। आपको ज्यादा दुख हो रहा है तो हम लिख देंगे बाय सिमेट्री, सपोर्टेड बाय डायग्राम। इवन इफ नॉट ड्रॉन तो वो समझ जाता है, बट बनाने करे इतना हाथ तो घूम सकता है ना। एंड रफ डायग्राम्स, इनफैक्ट आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है वॉट एवर डायग्राम यू ड्रॉ विल बी टेकन एज अ रफ डायग्राम। नाउ कमिंग बैक इनटू द सम, चलो 2 टाइम्स इंटीग्रेट 0 टू 4, ये y कौन है, कर्व, वो तो y स्क्वायर है, तो लेके आएगा ना √25x, उसमें से 25 बाहर आ गया 5 बन के, अंदर रह गया √x। नाउ इंटी ने रूट को बोला तू कौन है, रूट बोला वेट आई शो यू द पावर, रूट बोला वेट आई शो यू द पावर। पावर देखा तो इंटी खुश हो गया, बोला वाह आप तो x रेज टू n हो, आई प्ले n+1 ऑन यू, 3/2 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, सो 0 टू 4, 3/2 ने रेसिप्रोकेट किया बाहर आते आते, सो 2/3। तब तक अंदर मैंने 3/2 को 1/5 कर दिया, सॉरी 1.5 कर दिया, दैट प्रोवाइड्स बेटर ट्रांसपेरेंसी। गिव मी अ सेकेंड। मैंने 3/2 को 1.5 किया एंड आई जस्ट सबमिटेड माय आर्ग्यूमेंट विद दैट, इट गिव्स मी मोर बेटर ट्रांसपेरेंसी पावर्स में। तो गिव मी वन मोर स्टेप का टाइम, सो इट्स गोइंग टू गो 20/3। अब डिब्बा डिब्बा, तो मैं खुद को बोला दूसरा डिब्बा क्यों बना रहा है, 0 ही जाने वाला है, सो खाली एक ही डिब्बा बनाया, 4 गया, अपर लिमिट 1.5। नाउ 4:1.5 इट्स इजी फॉर मी टू डील, एक 4 हो गया और एक √4 हो गया, चेक, एक 4:1 दैट मीन्स फुल 4, और एक 4:0.5, 4:0.5 बोलेगा तो 4:1/2 which is √4। So once again 4:, that is why I said it provides me better transparency। 4:1 4 हो गया, 4:0.5 √4 हो गया, check। So finally I can see 20/3 4 और एक आधा 4, अक्खा 4 और एक आधा 4। Now that's going to go 80/3 और √4 का हो गया 2। So answer is 160/3 and you are not supposed to forget square units। बहरन दुनिया तेरा आधा एक मार्क काट लिया। Now coming back into the next one, y square equal to something x, हाथ अपने आप चल गया, पैराबोला y square equal to something x, x equal to 4 भी चल गया, x equal to 0 भी चल गया। Read the question, they asked me to find the area bounded by the parabola and the line, x equal to 4। मेरे को तो एक ही चीज आ रहा था, इंटीग्रेट, एंड आई एम वेरी सीरियस, मैं तो एक ही चीज लेके गया था एग्जाम में, a is integrate a to b y dx। Now next coming in, integrate 0 to 4, डायग्राम देख के बात किया, एंड यहाँ पे देयर इज अ चांस कि यू मे फॉरगेट बार 2 लिखना। कौन भूल जाता है जो ये चीज पे हमेशा रुक के खुद से बात नहीं करते हैं। दिस गिव्स यू एरिया ओनली अप टिल द एक्स एक्सिस तक, तो बाकी का एरिया कौन देगा, 2 टाइम्स
एंड दैट टू बाय सिमेट्री. बाय सिमेट्री लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा है. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर. चलो अभी कर्व को लेके आते हैं. वी आर इंटीग्रेटिंग द कर्व ना, मगर वो तो वाई स्क्वायर 16x है. हाँ तो आप रूट 16x कर देंगे. ऑफकोर्स माँ dx. रूट 16 बार आता है 4 हो जाता है, और इंटी रूट को बोलता है कौन है तू, आई डोंट नो यू. तो ये रूट बोलता है रुक मैं तुझे मेरा पावर दिखाता हूँ. इंटी पावर देख के खुश हो जाता है, बोलता है प्ले n प्लस वन एन प्लस वन ऑन. सो हाफ पे प्लस वन 3/2 3/2 गोइंग फ्रॉम 0 to 4. 3/2 रेसिप्रोकेट होता है 2/3 बनने के लिए. उतने में मैंने x रेज टू 1.5 कर दिया फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी. देन फाइनली 16/3 हो गया. अंदर खाली 4 आ रहा है. 4:1.5. 16/3 तो चल रहा है. एक आखा 4 आया और एक आधा 4 आया. एक आखा 4 एक आधा 4. सो तब तक ये हो गया 16/3. 4 and 2 8 हो गया. आंसर हो गया आपका 128/3. प्रोफेशनल्स डोंट ट्राई. रिस्क विल बी ऑन योर शोल्डर्स. बाजू में 16 to 8 करने का. स्क्वायर यूनिट्स. लेट्स कीप मूविंग. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम. अरे क्या मस्त है रे. ग्रीन भी मस्त है, सवाल भी मस्त है. मैंने तो वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक सुन भी लिया था, तो मेरे हाथ से तो पैराबोला बन भी गया. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. एक बात बता, तू अगर इतना कर्व नहीं बना सकता है तो लाइफ में कैसे आगे जाएगा. लाइफ इज नॉट स्ट्रेट. एनीवे आजकल पैराबोलिक बहुत चल रहा है. माने इस जिस जहां में हम जा रहे हैं वहां माने सिल्वर बोलो गोल्ड बोलो, दे यूज द वर्ड पैराबोलिक. क्योंकि अब लीनियर जमाना नहीं रहा, जो भी होगा वो फट से होगा. सो पैराबोलिक. तो x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 0 है. सवाल वही है, फाइंड द एरिया नो बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन. मैंने तो रिक्शा में यही लेना था, a to b y dx. मैंने डायग्राम से इंटीग्रेट 0 to 3 y dx कर दिया. बस यहाँ वही जीता जो रुका था. ये तो मुझे खाली x तक ही देगा ना, बट आई हैव टू गो नीचे ऑल्सो. 2 times by symmetry. So finally 2 integrate 0 to 3. आपको आपका कर्व लाना है. कर्व तो y स्क्वायर 4x है, तो आप रूट 4x लेके आओ. 4 आपकी बाहर आ जाती, 2 हो जाती. इंटी फिर से गुस्से से बोलती रूट को कौन है तू. रूट बड़े प्यार से उसको बोलती रुक जा जानू मैं तुझे मेरा पावर दिखाती. पावर देख के इंटी झूम जाती, बोलती वाह यू आर x रेज टू n. आई प्ले n प्लस वन n प्लस वन ऑन यू. हाफ पे प्लस वन 3/2 3/2 गोइंग फ्रॉम 0 to 3. 3/2 रेसिप्रोकेटेड 2/3 हो गई. तब तक अंदर मैंने 1.5 कर दिया. रीजन यू नो इट वेरी नाइस. ट्रांसपेरेंसी के लिए आई एम कंफर्टेबल डीलिंग विद 1.5 पावर बिकॉज मुझे वहां दिखता है एक पूरा और एक आधा. सो नाउ 8/3 हो गया. अंदर 3 आ गया. 0 आने से तो कुछ फायदा नहीं था. सो फाइनली 8/3 हो गया. एक आखा 3 हो गया, एक आधा 3 हो गया. नहीं समझा ना, एक आखा 3 और एक आधा 3. 3 और 3 कट हो गया. सो एंड आंसर कम्स 8√3 स्क्वायर यूनिट्स. काइंडली प्लीज डोंट फॉरगेट योर स्क्वायर यूनिट्स. नाउ ऐसा मजाक कर गया फेब 25. मैंने इसका शॉर्टकट नहीं है. आई हैव शोन यू नाइस अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट. अरे कल तो बहुत मजा आ गया, जो भी एंड तक था ना. वो e⁻x fx प्लस f'(x) में उन्होंने फेब 25 में जो 4 मार्क का सम MCQ में पूछा उसका शॉर्टकट मालूम था. ओके दैट वाज एन अनजस्टिफाइड एक्ट ऑफ theirs, बट देन आई लव्ड इट बिकॉज हाउ मेनी इन महाराष्ट्र मस्ट बी नोइंग दैट. तू और मैं. फिर बाद में मैंने ना थोड़ा सा उसमें और मिर्च मसाला डाला. अब क्योंकि उन लोग जान गए थे कि मैं तुझे वो बता गया था, तो अब उन्होंने फेब 26 में उसको 4 मार्क का सम रखा. तेरा शॉर्टकट नहीं, अब सॉल्विंग तू जाना चाहिए. नहीं 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 सर, आर वी एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट द फाइनल आंसर ऑफ द एरिया अंडर कर्व. कन्वर्ट बोले तो पॉइंट डिवाइड करना नहीं प्लीज. यू आर नॉट विद द कैलकुलेटर आउट देयर. सो इवन वो ये चीज जो प्रोबेबिलिटी में पूछता है ना, 612 डिवाइडेड बाय 729. अरे पागल है क्या, मैं क्या डिवीजन के लिए पैदा हुआ है बोर्ड्स में.
So I just keep my probability in the reduced form, जैसे भी है वैसा. I don't try to divide and get the answer. No need. See, उन्होंने भी ऑप्शन में देखो. ऐसे भी हमारे पास बोर्ड टेक्स्ट बुक है, आप देख लीजिए. बोर्ड टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स जैसे फ्रैक्शन में होते फ्रैक्शन में ही दिए. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर. मेरी जान जल गई. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड. एक तो एमसीक्यू में है और मुझे मालूम है कि मुझे सॉल्व तो करना है और मुझे अंदाजा नहीं आ रहा है कि है क्या, क्योंकि दे हैव ट्रिक मी. मेरा गाना था वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक्स और हल्का हल्का मुझे मन में रखा था कि उल्टा भी जाता है एक्स स्क्वायर. ओह माय गॉड सर, आप ड्रामेटाइज अच्छा कर लेते हो, ऐसा मत बोलिए. मैं आवाज ले गया था पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक्स, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता था कि दूसरा वाला भी होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू. आओ गो हो सुनाई दे रहा है वो. सो मैं बोला डोंट ट्रिक मी बेबी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो तुसी. और वो लाइन भी देखना y इक्वल टू 4 है. इट्स नॉट गोइंग x इक्वल टू 4. सो वो भी एक इशारा था. माने इस बार मेरा 90 रोटेट हो गया. सो मेरा पैराबोला ऐसे चले गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और ये रहा मेरा y इक्वल टू 4 कटिंग y एट 4 और ये है y इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन. मुझे बोला फाइंड दिस एरिया. मैं बोला ओके कूल. मैंने शुरू किया a इज इंटीग्रेट a टू b y dx. फिर मैं खुद को बोला बॉबी इतना अच्छा सोचा तो ये नहीं सोचा कि फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. जब तेरा पूरा कार्टेशियन सिस्टम 90 डिग्री रोटेट हुआ है, x बन गया y, y बन गया x, तो आपका फॉर्मूला में भी इंटीग्रेट a टू b x dy हो जाना चाहिए. मैं बोला एग्रीड. अब मैं डाला इसके अंदर मेरा सम इंटीग्रेट 0 टू 4 x dy चेक. और फिर वापस खुद को वही बोला, क्योंकि सॉरी वापस खुद को मैं वही बोला. ये तो जिस तरह वो खाली x एक्सिस तक देता था, ये भी उसी तरह मुझे खाली y एक्सिस तक देगा. तो बाकी का इस तरफ का कौन देगा? 2 टाइम्स सिमेट्री. सो जो इसमें फंसा उसका एक मार्क गया. सो आई होप यू गॉट इट. पहले तो मुझे वो सेकंड साउंड सुन लिया मैंने. आई वाज क्विक ऑन. अब आप भी सुन सकते हो वो साउंड. मैं समझ गया पैराबोला इज गोइंग अलोंग द y. सो एवरीथिंग इज गोइंग अलोंग द y. इवन द लाइन इज गोइंग y इक्वल टू 4. सो मैं फॉर्मूला तो मेरा तो फट में तो लिख दिया. a इज इंटीग्रेट a टू b y dx. पेंसिल से कट करके a टू b x dy. y बना x बना y. बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम वर्कड फॉर यू ना आपका ये. नाउ पुटिंग द पर्टिकुलर्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 4 x dy. अभी कर्व लाऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को नॉक करेगा ना. जिस तरह वो खाली x तक देता है, ये खाली y तक ही देगा. तो बाकी का इस तरफ का कौन देगा? 2 टाइम्स. Now let's bring in the curve. Let's bring in the curve. So 2 times 0 to 4. Okay, आपका कर्व था x स्क्वायर y, मगर यहाँ तो x चाहिए रूट y. अब इंटी भड़क गई, बोलता है रूट कौन है तू? तो रूट बोलती बड़े प्यार से जानू रुक ना, मैं तुझे पावर दिखाती ना. इंटी झूम जाती, खेल लेती n+1 चेक एवरीबॉडी. गोइंग फ्रॉम 0 to 4. रेसिप्रोकेट कर दिया 3/2 टू मेक इट 2/3 और अंदर मैंने 1.5 कर दिया फॉर नो बेटर ट्रांसपेरेंसी. अंदर आ गया आपका 4. 0 तो नहीं आएगा. 4:1.5. तो आंसर होगा 4/3. एक आखा 4, आई एम सॉरी, एक आखा 4 और एक आधा 4. सो 16 और 2 आंसर हो गया आपका 32/3 स्क्वायर यूनिट्स. सो मैंने देखा कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका था. नाउ कमिंग टू द ओ माय गॉड, डायग्राम उन्होंने नहीं दिया होता है, मैंने बनाया डायग्राम. सर आपसे भी नहीं बनता है करके आप बना के लेके आए हो. हाँ ऐसे ही समझ लो बस. अभी हम सम पे फोकस करें. फाइंड एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. और बेसिकली उन्होंने बोला है एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास. तो ये सेगमेंट का भी नाम वही है. आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट इट वाज वंस आस्क्ड, सो कैन बी आस्क्ड एनी टाइम अगेन. मार्च 22 एक बार पूछ लिया है. सो मैं 2 सम लाया हूँ, बिकॉज सच काइंड ऑफ सम्स यू नीड 2 गोस. हाँ बैठ गया, मस्त बैठ गया. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर.
एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, मैं चमका x बन गया y, सो वो दूसरा भी बन गया. Now they are asking me what? Find the area between the curves. That means they are asking me to find this area. The whole plan goes in this way. We go for the outer curve का area under the outer curve, minus the area under the inner curve, and that's going to give me area between curves. अरे ये तो शायरी हो गया. एरिया अंडर आउटर कर्व माइनस एरिया अंडर इनर कर्व. रेड में से ब्लू हटा तो काला रह गया. एरिया अंडर आउटर कर्व माइनस एरिया अंडर इनर कर्व गिव्स यू एरिया बिटवीन कर्व्स. लेकिन जो भी है, एनी एरिया यू आर गोइंग टू फाइंड, आपको इंटीग्रेट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, बस यहाँ बवाल खड़ा हो गया. मैं बोला साला गेम अटक गया. सोच तो बहुत बढ़िया थी, एरिया अंडर आउटर कर्व माइनस एरिया अंडर इनर कर्व. तो जो ना समझते हैं इंग्लिश, वो लाल में से ब्लू हटा तो काला दिख रहा है. बट जो भी कर्व के अंडर तुझे एरिया ढूंढना है, आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके, बस बवाल खड़ा है. 0 से लेके कहाँ तक? So that's something what we don't know. So what we are going to do in this, the first step, हम वो P जो है ना उसको फाइंड करेंगे. P के कोऑर्डिनेट्स. नाउ शी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. और स्कूल से मैं सीखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए दो चीज का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो दो चीज को साइमल्टेनियस सॉल्व करने का. सो चलो अब हम P ढूंढ. सर मगर P से हमको क्या फायदा? हमको तो वो चाहिए ना, P का x ही तो नीचे आएगा ना. तुझे 4 माले से नीचे फेंकेगा तो तू उधर ही खिरेगा ना जहां से मैं छोड़ा था. ऐसा उड़ते 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 सब अलग अलग जगह, बोली में फेंका, कांदेली में गिरा, ऐसा थोड़ी होगा. सो जहां छोड़ा वहीं नीचे गिरेगा. तो P का जो x आएगा वही नीचे x होगा. सो लेट अस से P इज नो 4,4. तो P का x कोऑर्डिनेट 4 है तो नीचे भी 4 ही होगा. सो जस्ट चेक मी वापस से, ताकि हम एक सम दबा के करें और सेकंड सम फिर उसे फाइनली नेल कर दे. कमिंग बैक ओवर हियर, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास. एक सीधा था, एक अबाउट द नो वाई एक्सिस था, वो मैं भाप लिया था. मैंने बना भी दिया डायग्राम. चाहिए तो वापस तुझे खाली पेज पे ही बना के दिखा था. तुझे ऐसा तुझे बुरा लग गया, नहीं पहले से बना के आई. अब फॉरगेट इट. चल, एरिया बिटवीन कर्व्स माने वो शेडेड एरिया फाइंड करना है. तो होल प्लान इज व्हाट? एरिया अंडर आउटर कर्व लाल माइनस एरिया अंडर इनर कर्व ब्लू विल गिव यू एरिया बिटवीन कर्व्स ब्लैक. जो भी एरिया ढूंढेगा तुझे इंटीग्रेट करना होगा उस रिस्पेक्टिव कर्व को. फ्रॉम 0 से लेके बबाल खड़ा हो गया, 0 से लेके कहां तक. अब वो ढूंढने के लिए आप P का x कोऑर्डिनेट ढूंढो. P ढूंढना बोलेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? दो कर्व का, तेरा मेरा थोड़ी होगा है. आओ तो चलो इंटरसेक्शन का पॉइंट ढूंढते हैं. इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए ऑलवेज सॉल्व द टू थिंग्स व्हिच गॉट इंटरसेक्टेड साइमल्टेनियसली. तो मैं हेडिंग दे देता हूं कि मुझे P फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिया और उसे तैयार रखा. सर क्या तैयार रखा? ऐसा लिख के तैयार रखा तो वो जाएगा ना दूसरे में. दूसरा कौन था? y स्क्वायर इक्वल टू 4x. देख गया ना y अंदर. So it's going to go x raised to 4 upon 16 equal to 4x. एक x कट हो गया x क्यूब. 16 सामने आके 64. सुभान अल्लाह, x मेरा 4 आ गया. वही x को 4 यहाँ रख देते हैं तो कट के y भी आपका 4 हो गया. तो मैं तो बड़ा लाउड सा लिख गया द p is 4,4 और खुशी से यहाँ पे 4 भी लिख दिया. नाउ लेट्स गो आगे. चलो अभी A1 ढूंढेंगे. सर व्हाट इज A1? द एरिया अंडर द आउटर कर्व विच इज द रेड कर्व. सो मैं सेकंड पार्ट ढूंढना शुरू किया. तो अभी मैं यहाँ पर वापस बढ़ दूं. वी आर हियर फाइंडिंग आउट दैट. नाउ दैट वाज x इक्वल टू 4, दैट वाज x इक्वल, वी जस्ट फाउंड आउट दैट. और हम ढूंढने बैठे, मैं पहले लिख दूं. ओके, हम ढूंढने बैठे A1, जिसे मैंने बोल रहा हूँ एरिया अंडर द आउटर कर्व. एरिया अंडर आउटर कर्व. सो लेट मी जस्ट give you the diagrammatic representation of that. It's that. Check. Area under outer curve up till the x-axis तक. तो नाउ मैं तो रिक्शा में एक ही चीज ले गया था. A is integrate A to B y dx.
तो मैं ले गया इंटीग्रेट 0 to 4 y dx। ना ना ना, अप टिल एक्स, और हमें भी अप टिल एक्स ही चाहिए। सो बाद में यहाँ पे थोड़ी सी वो ज्यादा ईमानदारी डालते तो बोलते ना सोसाइटी खराब हो जाती है, सारे ईमान वाले हो गए तो भगवान परेशान हो गया, मंदिर में लाइनें कम हो गई ना फिर। सो बार वापस तो नो 2 डाल देगा, किस खुशी का 2, नीचे थोड़ी जाना है हमें। सो यही बराबर था हमारे लिए। अभी कौन सा कर्व है ये, आउटर कर्व, लाल कर्व, जिसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वहां से हमको कर्व का y लाना है, दैट विल बी अंडर रूट 4x। प्लीज चेक इन वन मोर टाइम। हम आउटर कर्व के नीचे का एरिया फाइंड कर रहे हैं। आउटर कर्व वो लाल लाइन दिख रही, लाल कर्व दिख रहा है, उसका वो पैराबोला का इक्वेशन क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो अंडर दैट कर्व वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया। सो उसका y ला रूट 4x। रूट 4x में से 4 बार जाती 2 हो जाती, इंटी बोलती उसके पहले x बोलती, वेट जानू हर बार के एक ही गाना गाती है, मैं तुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानती। ले, मैंने पावर दिखा दिया। इंटी बोला थैंक यू, लेट मी प्ले n+1 ऑन यू, थैंक यू, लेट मी प्ले n+1 ऑन यू। 3/2 नो रेसिप्रोकेट, ओके, सो कैन आई जस्ट पुट इट ओवर हियर, या। सो 3/2 आपका 2/3 हो जाएगा, और अंदर में x रेज टू 1.5। सो दिस सीम्स टू बी नाउ आई थिंक सो स्टैंडर्ड। माने आधी रात को भी मैं ये उठ के कर लूं, माने नॉट द सम बट दिस पार्ट ऑफ द सम। पैराबोला अभी ये चौथा हम कर रहे हैं, मे बी फिफ्थ वन। फ्रॉम 0 to 4 ओनली 4 एंटर्स, सो 4:1.5। तो मुझे एक आखा 4 दिख रहा है और एक आधा 4 दिख रहा है। सो 16 and 2 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो ये कहानी खत्म हुई। एरिया अंडर आउटर कर्व। नाउ लेट्स हिट द सेकंड एरिया। एरिया अंडर, हमको प्लान मालूम था ना, एरिया अंडर इनर कर्व। सो लेट मी सिंग फॉर यू वंस अगेन। Area under outer curve minus area under inner curve gives you area between curves. That's what we wanted. So just give me a second, मैं आपको highlight करके दिखाता हूँ कि हमें ये area find करना है, area between the parabolas. Now that's going x equal to 4 and that's going x equal to 0, और हम ढूंढने बैठे area under inner curve। तो वो लाल में से ब्लू हटाएंगे, काला मिल जाएगा। सो अभी हम ब्लू ढूंढने बैठे। सो लेट्स हिट द डेक। इट्स इंटीग्रेट a to b y dx। वो एक ही चीज तो मुझे आती है। सो मैं डायग्राम में देख के इंटीग्रेट 0 to 4 y dx। तेरे मन में 2 आया, क्यों, फॉर व्हाट रीजन, नीचे थोड़ी जा रहा, अप टिल x और अप टिल x ही हमको चाहिए। नाउ इंटीग्रेट 0 to 4, कौन सा कर्व चल रहा है, ब्लू वाला। ब्लू वाला पैराबोला जरा स्ट्रेच कर ना, स्ट्रेच कर। ब्लू वाला पैराबोला का इक्वेशन तो ये है, उसका y चाहिए तुझे, उसका y चाहिए। तो मुझे x स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है। आई विल जस्ट गिव यू अ सेकेंड टू सीप दिस थिंग इन यू, माने एब्जॉर्ब। ब्लू कर्व का y x स्क्वायर अपॉन 4, उसे इंटीग्रेट करना है। आउटर कर्व कौन सा था, वो लाल वाला y स्क्वायर 4x, तो मैं उसका y रूट 4x, इसका y x स्क्वायर अपॉन 4। अब कल ही इंटी भारी मात्रा में हुआ था हमारा। सो कमिंग बैक, 4 तो बोला मैं खड़ा हूं, उसकी मान ले, और उसकी मानने गया तो n+1 इंटी ना, n+1 3 आया, 4 के साथ जुड़ा। ओके, 0 to 4, 0 तो गया, 4 आया, 4 क्यूब अपॉन 12। सो व्हाई यू वांट टू मेक इट 64, एक 4 डिवाइड करना। सो शी गोज 4 स्क्वायर, और नीचे 4 से डिवाइड किया तो 3। द आंसर टर्न्स आउट 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ द फाइनल शॉट, द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बिटवीन कर्व्स क्या डिसाइड हुआ था, a1 माइनस a2। सर ये सब कब डिसाइड हुआ था, इतना अच्छा धुन में तो गया था। एरिया अंडर आउटर कर्व माइनस एरिया अंडर इनर कर्व गिव्स यू एरिया बिटवीन कर्व्स। एरिया अंडर लाल कर्व माइनस एरिया अंडर ब्लू कर्व गिव्स यू एरिया ऑफ नो ब्लैक। सो फाइनली इट्स गोइंग टू बी 32/3, जो पहला आंसर आया था, माइनस 16/3। एंड व्हाट अ वंडरफुल नो कॉम्बिनेशन, कॉमन डिनोमिनेटर अपने आप ही हो गया था, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। चर्चा करने से अच्छा, हाउ अबाउट लुकिंग एट द नेक्स्ट वन। हो, आपको बुरा लगा कि ये डायग्राम रेडी करके आता है, ये ऐसा थोड़ी है। आओ चलो, आपको लगता है कि डायग्राम नहीं बन सकता, आराम से ये लो, आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गई, या आपकी x स्क्वायर इक्वल टू 4y बन गई। मन साफ हो तो कर्व भी साफ ही आते हैं, उसके लिए मन साफ होना चाहिए। एरिया बिटवीन कर्व्स चाहिए, उसमें पहली चुनौती ये,
बिकॉज आप ये कर्व के अंडर में लाल लो, यू फाइंड एरिया अंडर दैट कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व टू गेट एरिया बिटवीन कर्व्स। आपको इंटीग्रेट करना होगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, बबाल खड़ा हो गया, वो तो पता ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ढूंढ लेंगे, उसी का x नीचे गिरेगा तो x पता चल जाएगा, क्लोजिंग इंटरवल पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द सम। अभी आपने देख लिया मैंने डायग्राम बनाई, मुझे बुरा लगता है कोई इस तरह सोचता है ना, तो चलो ओके। x इक्वल टू 0 है, लेकिन चुनौती बड़ी है, x इक्वल टू कहाँ तक इंटीग्रेट होगा। उसके लिए हम P ढूंढेंगे, तो मैंने हेडिंग दिया फॉर P। P इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, और स्कूल से मैं सीखा था किसी भी दो चीज का इंटरसेक्शन ढूंढना है तो उन दो चीजों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले वाले को ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y, और मैं रेडी रखता हूँ उसे कहीं भेजने के लिए। कहाँ भेजना है उसे? दूसरे में भेजना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। देखो जा रहा है एक्स रेस टू 4 अपॉन 49 इक्वल टू 7x, एक एक्स कट्टा एक्स क्यूब, 49 इंटू 7 करके जिंदगी को झंड क्यों बनाना है, फिर वो किसका क्यूब होगा वो भी नहीं मालूम। उससे अच्छा 49 वो 7 स्क्वायर, वो जाके 7 से मिलके अपने आप क्यूब बन रहा है, तो तू काय को ज्यादा ढूंढ रहा था, 7 स्क्वायर और वो 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। x is going 7, and if you put your x 7 over here, you can see the y also happening 7, so we put it loud, the p has gone 7 comma 7, and therefore this is x equal to 7। अब चालू होता है a1 का कहानी। a1 क्या है? एरिया अंडर आउटर कर्व, एरिया अंडर आउटर कर्व। तो मुझे ना मजा आ जाता है, हमारा एक बैच था ना, उसने एरिया ऑफ आउटर कर्व लिखा था। माने आવું इंग्लिश એટલે मैथमेटिकल इंग्लिश तो अच्छा होना चाहिए। चल आपका ओरल वर्बल इंग्लिश 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 अच्छा ना हो, मैथ्स का इंग्लिश तो अच्छा होना चाहिए। तो कर्व का एरिया कैसे ढूंढ सकते? हाउ यू आर एबल टू फाइंड द एरिया, नो कर्व एरिया ऑफ अ लाइन। तो कर्व भी आप थोड़ा सीधा को तो लाइन ही है ना, सो एरिया ऑफ कर्व कैसे ढूंढ सकते? एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर आउटर कर्व। तो अभी डायग्राम रेफरेंस मैंने निकाल दिया था। सी आई एम डूइंग इट 2-3 टाइम्स बिकॉज वो ऊपर चले जाते हैं। आई वुड नॉट लाइक कल मैं फिर ऊपर नीचे कर रहा था, व्हाई शुड आई। और फिर तू आज थोड़ा सा ऐसा बोला ना, तू डायग्राम रेडी करके आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। दूसरा वाला क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। हम क्या ढूंढने बैठे हैं? ये उसके लिए a1 बोला तो क्या है? एरिया अंडर आउटर कर्व, वो हम ढूंढने बैठे। द गेम स्टार्ट्स, मैं रिक्शा में ले गया था इंटीग्रेट ए टू बी वाई डी एक्स। माने आई एम सो सॉरी, इधर लिखना भूल गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। सो इंटीग्रेट 0 टू 7 वाई डी एक्स। इसमें कोई 2 टाइम्स नहीं आएगा, हमें अब टिल x ही चाहिए था। नाउ लेट्स ब्रिंग इन द कर्व। तो चुनौती बड़ी है, कौन सा कर्व ला रहे हैं? लाल कर्व। लाल कर्व का पैराबोला का इक्वेशन क्या जा रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो उसका y लाना है तो √7x। अब समस्या और खड़ी हो गई। सी अभी तक के सम में √25x था, 25 बार आ गया। √4x था, 4 बार आ गया। √16x था, 16 बार आ गया। √7x में 7 बार आता है, अपना हिस्सा लेके बार आता है। सो ही डजंट गेट अ क्लीन एग्जिट ना, तो वो काट के ही बाहर आ जाता है। सो √7 बार आ गई, और इंटी पहले चिल्ला, उसके पहले रूट ने बोला वो चिल्ला मत, मैं तुझे मेरा पावर दिखाती हूँ। So इंटी बोलता है okay, you are x raised to n, let me play n plus 1, n plus 1, and that's going from 0 to 7. We reciprocate the no 3 by 2, 2 by 3, और अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए 1.5 from 0 to 7 यहाँ लेके चलते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं, यू आर गोइंग बट सच काइंड ऑफ सम्स व्हेन यू नो के आपने सम प्रैक्टिस कर लिया था, so whenever it pops up you know कि there are 3 segments in this sum. So why didn't you start this sum on the left side? माने पेज खोलते तो लेफ्ट साइड पे शुरू करो ताकि आमने सामने। सो इवन द चेकर लाइक्स टू सी, ओह वाह वाह वाह, नाइस। सो नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, √7 है, 2/3 है, वहां कोई जेलिंग नहीं हो रही है, और 7 अंदर आ रही है, 0 बोली मैं जा रही। नाउ कमिंग बैक, √7 है, 2/3 है, एक अक्खा 7 है और एक आधा 7 है, अक्खा 7 आधा 7। √7 आपका 7 हो गया, 7 और 7 49 हो गया, 49 और 2 वापस देख, √7 7, 7 और 7 49, 49 और 2 98, so you are getting 98/3 square units.
दैट्स अभी तो खाली A1 एरिया अंडर आउटर कर्व। लो सेव्ड बना हुआ था सर, चीटिंग अभी बना है आपके लिए, मैंने बार बार बनाया। x इक्वल टू 7। अब हम जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स A2। व्हाट इज A2? एरिया अंडर, एरिया ऑफ कर्व नहीं होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। एक पतली लिट्टी का एरिया कैसे ढूंढेगा? सो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द लोअर कर्व, इनर कर्व, सॉरी, एरिया अंडर द इनर कर्व। ओके, सो लेट मी बी वेरी फेयर टू यू। ये आपका एरिया जो आपको फाइंड करना था, एरिया बिटवीन कर्व्स, उसके लिए आपने सोचा था एरिया अंडर आउटर कर्व माइनस एरिया अंडर इनर कर्व। चेक दैट। सो दैट्स द ब्लू एरिया, एरिया अंडर इनर कर्व जो हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। उस कर्व का आपको दिख रहा है इक्वेशन क्या जा रहा है, उस कर्व का y क्या है। सो नाउ लेट्स कम बैक। मैं रिक्शा में ले गया था इंटीग्रेट a टू p y dx, मैंने सम में देखा इंटीग्रेट 0 to 7 y dx, मगर कौन सा y लाऊं? इनर कर्व का y विच इज x स्क्वायर अपॉन 7। चेक प्लीज नाउ। और माँ ऑफ कोर्स 7 बोला, मैं खड़ा हूं, एक्स स्क्वायर पे इंटी ने खेल लिया n+1 और n+1। आई होप यू अंडरस्टूड 21 कैसे। 3 आया और 7 ऑलरेडी था वहां पे। गोइंग फ्रॉम 0 to 7, तो 0 को हटा देते, 7 को रख देते हैं। 7 क्यूब अपॉन 21। क्यों खुद का लाइफ को खराब कर रहे हो? क्या कहते हैं, खुद की जिंदगी को जंड क्यों करना? 7 क्यूब करके फिर 21 से डिवाइड करो, एक 7 जा रहा है ना। सो एक 7 को काट दिया, नीचे भी 7 से डिवाइड कर दिया। आई एम सीइंग द आंसर एज 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। एंड इफ यू एट ऑल रिमेंबर, वहां आया था 98/3 स्क्वायर यूनिट्स। अभी याद नहीं था तो देख लो भाई, चल ओके। उसके प्रीवियस सम में आप देखोगे तो आपको रिश्ता दिख रहा है। A1 था 32/3 और A2 आपका आया था 16/3। ये A2 आपका 16/3 आया था, हाफ हाफ हो रहा है। अभी यहाँ पे A1 आपका 98/3 आ रहा है और A2 आपका 49/3 आ रहा है, अल्टीमेटली हाफ। So you can connect it. Now A, the required area between curves is going to be A1 minus A2, area under outer curve minus area under inner curve, area under lal curve minus area under blue curve gives you area of the black area. Now coming back, it's going to be 98/3 minus 49/3. Ultimately wonderful, 49/3, and please kindly don't divide this, 49/3 textbook answer यही है। Now coming back, MCQ। अब देख, ये है ना, ये कहानी ऐसी है, अगर चारों चीज दे दी है ना, कोई डायग्राम शायग्राम की जरूरत नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें भी जो एरिया है, इट्स बाउंडेड बाय द फोर थिंग्स, द कर्व, द टू लाइंस x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस। चौथा बहुत खास था। अब जब चारों चीज उन्होंने दे दी है तो मुझे जानना भी नहीं है कि क्या दिया उन्होंने। सो कैच द पॉइंट, इफ ऑल फोर थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन देन व्हाई यू वांट टू बॉदर के क्या दिया है। लेट्स स्टार्ट। a इक्वल टू इंटीग्रेट a टू b y dx। सो a इक्वल टू इंटीग्रेट a टू b y dx। आई एम ऑन इट। सो इंटीग्रेट 0 to 3 मुझे दिख रहा है, वो दो लाइन दिख रही है। मुझे मेरा कर्व भी दिख रहा है, वाई एक्स स्क्वायर और मा डी एक्स। उस पे मैंने खेल लिया n+1 और उस पे छोड़ने जा रहा हूँ 0 to 3। खाली 3 जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी 27/3 एंड अल्टीमेटली द आंसर टर्न्स अप 9 स्क्वायर यूनिट्स। सम इज ओवर, ऑप्शन देखने का। मूविंग टू नेक्स्ट, जुलाई 23, 3 मार्क्स। बोलो वाह, तब थोड़ा ऐसा लगता है वैल्यू हुआ सम का। चारों चीज दे दिया है करके, a इज इंटीग्रेट a टू b y dx एंड देन इट्स गोइंग टू बी, सर आपको डर नहीं लगता है डायग्राम नहीं बनाई? अभी अचानक आपको डायग्राम बनाने का शौक हो गया, डायग्राम नहीं बनाई और वो एरिया अगर नीचे जा रही, विल हैव टू यूज द सिमेट्री। कैसे नीचे जाएगा? उन्होंने बोला है ना, इट हैज टू बी बाउंडेड एट द एक्स एक्सिस। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर चारों चीज दे दिया है तो यू आर जस्ट गोइंग टू पुट द फॉर्मूला एंड फिनिश ऑफ। सो तो आगे आपको ऐसा, आगे ऐसा नहीं था ना। लेट्स रिकलेक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी फ्लिकर नहीं कर रहा हूँ पेजेस को। Find the area bounded by the parabola y square equal to 25x and x equal to 4। दो ही चीज था तो आई वॉज तो पेट्रीफाइड, डोरोफाइड, फट गई। दो बाकी दो किधर है? तो डायग्राम बताया, डायग्राम बनाया तो सब दिखने लगा। कर्व दिखा, x इक्वल टू 0 दिखा, x इक्वल टू 4 दिखा, x एक्सिस भी दिखा, लेकिन सारे लोग ने मुझे नीचे भी ले गया तो मैं थोड़ा उन लोग से ज्यादा सयाना था।
2 times. Now coming back over here. सो इंटीग्रेट 1 to 4 चल रही है, y में हमारी x स्क्वायर आ रही है, आपका कर्व x स्क्वायर चल रहा था, तो हम खेलेंगे n+1 इस पे आएगा दोनों इस बार 1 to 4. सो हम बनाएंगे डिब्बा डिब्बा, वो बोलते ना मंडप सजाएंगे, दुल्हे को बुलाएंगे 64/3, दुल्हन को बुलाएंगे 1/3. प्लीज चेक. अल्टीमेटली 63/3 कॉमन डिनोमिनेटर था, दैट्स गोइंग टू बी 21 स्क्वायर यूनिट्स. चेक एवरीबॉडी प्लीज. Now coming to the next one, July 25 MCQ, चारों चीज दे दी है. The A is equal to integrate a to b y dx. So it's going to be integrate 1 to 3. Check please. The y was your x square dx. We are going to play n+1 and going from 1 से लेके 3. So it's going to be now डिब्बा minus डिब्बा. मंडप सजा दिया, दूल्हे को बुला लिया 27/3, दुल्हन को बुला लिया 1/3. Finally, common denominator का फायदा 26/3 square units. Do we have any answer 26/3? Check please. Now, okay. July 24 fill the blanks. A is equal to integrate, चारों चीज दे दिया है तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं है. A is, ऐसे भी ये जो है वो मुझे पता भी नहीं क्या है. No, मैं लेके गया हूँ y square equal to something x square equal to something y. Apart from that, yes, those who are too good with all this and those who have good amount of memory, nothing bad. Those who have got the less memory, they find out some other ways to crack the things. हमें हमारी खामियों को किस तरह ओवरकम करना, उसके लिए शायद हमने जीवन प्राप्ति की थी. मेरा मन अजीब अजीब हरकतें करने का मन, कभी ऐसा बाबा बन जाएंगे. आगे चलते हैं. वो एक्स्ट्रा जो चीज जो लेके जाते हैं वो सर्कल और इलिप्स, वी आर कमिंग टू दैट एंड माय जस्टिफिकेशन इज देयर, बट it's just my justification from my end as to what events have happened up till now and why so. बाकी आप करके जा रहे हो, बढ़िया है. LMR should be given its due importance. जैसे कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आप पहले ये कवर कर लीजिए, इस पे तेरा हाथ एकदम स्मूथ होना चाहिए. सो वर्क इट आउट 2-3 times and then sit back to refer things from your course material. Just the broader coverage. This is finer coverage. Now coming back over here, मैंने तो चालू कर दिया इंटीग्रेट 1 to 5 x⁴. माई y was x⁴. आई एम प्लेइंग n+1 और डर लग रहा है थोड़ा पावर बहुत ज्यादा हो गया है. 1 to 5. नाउ गोइंग इन डिब्बा माइनस डिब्बा. सो ये तो मैं लोअर डिब्बा तो 1/5 भर दिया. सर आप बड़े स्मार्ट थे, इधर भी 5 भर दिया. सर आप तो सी बड़े स्मार्ट हो, लुच्चे हो आप. अब वो जो दुल्ला आ रहा है ना 5:5, 5:5, तो इट्स गोइंग टू बी 5² 5. वो एक पप्पा ने अपने बच्चों को सुनाया था ना, अलग कर देंगे तो तोड़ना इजी हो जाएगा, तो मैं वही किया. 5² 5. तो 25 25 5, 25 25 625. अभी हर मम्मी ने 25 स्क्वायर तक तो आपको सिखाया होगा. 15 से डायरेक्ट 25, बीच का किसी को याद नहीं होता है. 625 और into 5, that gave me 3125. Okay, so finally 3124 upon 5, and for God's sake just leave your answer that way. डिवाइड बाय 5 इजी होता है, into 2 करके आंसर लिखोगे. ओके, you'll get the करेक्ट आंसर का करेक्ट फुल मार्क्स मिलेगा, बट ही जस्ट फेल्ट के why there was a need for do that thing. आप 3124 upon 5 रखते तो भी मैं आपको फुल मार्क्स ही देने वाला. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, चारों चीज दे दी है तो फिर हमें ज्यादा नहीं सोचना है. a is integrate a to b y dx. So finally we are going to go integrate 0 to 3. The y is coming in x² + 1 the whole of dx. Okay, एंड देन एक्स स्क्वायर का होगा n+1. और अगर कल का लेक्चर बैठे थे और आपका इंटीग्रेशन थोड़ा भी साउंड है तो 1 का इंटीग्रेशन x, बिकॉज x का डेरी 1. गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 3. तो मुझे लगता है 0 का डिब्बा बनाना, चलो बना ही देते, नहीं तो आप बोलोगे बना क्यों नहीं रहा, बट दैट वाज नॉट नेसेसरी. नाउ पहले दुल्ला आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 27/3 + 3. चेक. अब दुल्हन आ रही है, दुल्हन है ही नहीं, भूत. 0/3 + 0, तो वो तो चली गई. So finally आपके पास रह गया 9 + 3 and that's going to be equal to 12 square units.
चेक एवरीबॉडी। बस इस तरह है ना, बड़ी स्मूथ चल रही थी सारी चीजें। सो यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा मस्त चल रहा था और सब कंफर्टेबल भी था। पैराबोला दिया है, बिटवीन पैराबोलास दिया है, मामू बनाया उसने, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक्स का आवाज चेंज करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एक्स बनाया, तो भी हम उसके मामा निकले। हमको मालूम था इट्स गोइंग 90 डिग्री, सो वी चेंज एवरीथिंग इवन द फॉर्मूला। इंटीग्रेट ए टू बी वाई डी एक्स तब ठीक था, वहां ऑनलाइन मैंने इंटीग्रेट ए टू बी एक्स डी वाई कर लिया। फिर अचानक बारिश होने लगी एमसीक्यू टाइप सम्स की। अगर चारों चीज दे दिया है, कर्व, द टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मैं स्ट्रेट ए इक्वल टू इंटीग्रेट ए टू बी वाई डी एक्स फटाफट सॉल्व कर लूंगा। फिर मार्च 24 में यह हादसा हो गया। अब स्टूडेंट तो वो लेके चला गया था, ऐसा ऐसा करना है, चारों चीज दे दिया है, चल फटफट सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, एंड दिस वाज 4 मार्क का सम। ओके, उस टाइम भी हमारे नोट्स में था ये सम, बट वो बोलते हैं लास्ट मोमेंट ही जस्ट पिक्ड अप द नो पंच पॉइंट्स। वो ये सम शायद मिस कर गया, देखना। चारों चीज दिया है, चलिए शुरू कर देते हैं। आंसर रॉन्ग हो गया। 4 मार्क का सम इतना ढीला, उतना भी तो अगर वो सोचा होता तो शायद वो याद करता, तो उसको लगता नहीं सम में कुछ है, गड़बड़ है। ऑफ कोर्स फिर वो सम देखा होना चाहिए उसने ये। चलो आपको ये सम दिखाते। मार्च 24 4 मार्क्स का सम था, ये कुछ यूनिक है, सो दिल के पास रखना है इसे। नाउ चल, रेडी? y इक्वल टू -2x, ये आपकी लाइन ऐसे चली गई, ये हो गया आपका y इक्वल टू -2x। ओके, आर्ग्यूमेंट, तुझे कैसे पता चला ये लाइन है? y इक्वल टू mx प्लस c, फिर उसमें m मुझे -2, स्लोप -2 दिखा, माने लाइन विल बी मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल। सी, ऐसा होता है आपका पॉजिटिव स्लोप, ऐसा होता है आपका नेगेटिव स्लोप। सो ये सारी चीजें मैंने नो स्ट्रेट लाइंस, इतना मैं 12th का स्टूडेंट, मुझे समझ में आता, नहीं समझा तो आज समझ गया ये चीज। फिर मेरी x इक्वल टू -1, फिर मेरी x इक्वल टू 2, फिर क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ऑल दिस थिंग्स एंड द x एक्सिस। तभी मैं समझा, रब रखा, इतनी मेरी मन गिल्ली हो गई कि यार भगवान बचा लिया, कहीं मैं झांसे में आ जाता कालू के बोलने में। चारों चीज दे दिया है, बिंदास गो ऑल आउट, ए इक्वल टू इंटीग्रेट ए टू बी वाई डी एक्स, मेरे सम के धजिया उड़ा देने थे। सर क्या क्या धजिया उड़ाना था? अगर आप -1 to 2 इंटीग्रेट कर जाते तो आप देख रहे हो कि कुछ एरिया अबाव द एक्स एक्सिस है, कुछ एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, माने ये एरिया प्लस है, पॉजिटिव है, और ये एरिया आपका नेगेटिव आ रहा है। माने अंदर ही इन लोग है ना इरोड कर लेते खुद का एरिया, ये इरोड समझते, इरोजन, इरोजन। द नेगेटिव एरिया वुड हैव ईटन अ गुड चंक ऑफ पॉजिटिव एरिया एंड गिवन यू द झटुकला एरिया, जबकि दोनों एरिया को ऐड होना था। तो साला दूसरे वाले ने तो इसको खाना शुरू कर दिया दीमक की तरह, और आपको दे दिया झट्टू आंसर है। सर अल्टीमेटली सीधी बात करो, करना क्या है? दो अलग एरिया A1 A2, ये वाला A1 ले लेते, वो वाला A2 ले लेते। इसको हम -1 to 0 इंटीग्रेट करेंगे, उसको हम 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे। उस वाले को जब 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे तो उस पूरे सम को मॉड में रखेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है ना एरिया इज गोइंग बिलो द एक्स एक्सिस, तो वहां तो आंसर नेगेटिव आता है, बिकॉज सारे y नेगेटिव है वहां पे, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग y, तो उसको हम मॉड में कर लेंगे सॉल्व, और एंड में हम फिर प्लस कर लेंगे दोनों एरिया। और अगर हम डायरेक्ट करते हैं -1 to 2, तो ये अंदर ही अंदर मारामारी कर लेते, वो नेगेटिव और पॉजिटिव को खा लेता, और थोड़ा सा जो बच जाता वो तुझे दे देता, जा लिख दे आंसर तू अपना। लेट्स स्टार्ट। फिर मैं डायग्राम आपको और एक बार समझाऊंगा। सम इज सो सिंपल। नाउ A1 इंटीग्रेट ए टू बी वाई डी एक्स, रिक्शा का चमत्कार। सो इंटीग्रेट A1 इंटीग्रेट -1 to 0, लो टू हाई, वाई डी एक्स। ओके, हमारा y क्या है? -2x, वो तो उस तरफ भी, दैट्स माई y गोइंग ऑन फॉर द फुल लाइन।
So it's going to be -1 to 0 -2x. -2 बोला मैं तो खड़ा हूं, x बोला माथे 1 है, तो इंटी बोला n+1 n+1 गोइंग फ्रॉम -1 to 0. उसमें 2 तो निकल गई, तो फाइनली तेरे पास -x² रह गया फ्रॉम -1 to 0. तूने डिब्बा डिब्बा बना दिया, पहले दूल्हे को बुला लिया, चेक प्लीज, दूल्हा 0 था, एंड माइनस नाउ दुल्हन आ रही है तो वो 1 हो गई, माइनस ऑफ x², लेकिन x² में जब -1 आया तो वो अंदर ही +1 हो गया, बाहर का माइनस रह गया, सो अल्टीमेटली 1. चेक एवरीबॉडी. कैन आई कम विद द लास्ट स्टेप ओवर हियर? शायद तो वो एंड का स्टेप में गया. ओके, -x² गोइंग फ्रॉम -1 to 0. प्रथा क्या बोलता है? दो डिब्बे बनाने के. पहला दूल्हे को बुलाएगा, लो -0. अब दुल्हन को बुलाएगा, माइनस तो है, x² में -1 का स्क्वायर 1 हो गई, एंड फाइनली आंसर आपकी हो गई 1. सो 1 स्क्वायर यूनिट. नाउ A2 को हम यहाँ वर्क करते हैं. चलो डायग्राम रखा. शी इज माई A2. सो A2 इज इंटीग्रेट A to B y dx. मैं बोला नो प्रॉब्लम. इंटीग्रेट 0 to 2 y dx, और तब आ गया आपका मॉड. Because now when you are saying you are going to integrate 0 to 2, तो वो चेकर का भी ध्यान कर, आपका भी ध्यान जाना चाहिए, और तुसी एरिया पूरा नीचे नेगेटिव आएगी. तो लेट्स कीप द मॉड का प्रोटेक्शन, ताकि एंड एरिया जो नेगेटिव आएगा मॉड से प्लस कर देगा. सो इंटीग्रेट 0 to 2, आई एम सॉरी, इंटीग्रेट 0 to 2 -2x. आपका y चल रहा है -2x dx. अब मैं था गुज्जू भाई, ये मॉड है ना, ये डंडे दो मन ने तंग कर रहे थे, क्या पूरा सब में डंडा 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 करते रह गए, डंडा ही घुस जाएगा मेरे में. मैं बोला यार माइनस आया है और डंडा भी है, तो चलो फिर यूज कर लेते हैं. काश को ये स्टेप समझता. मॉडुलस था और माइनस था, मौका था हाथ में, मॉड को तू फंक्शन करवा लेता, माइनस को उड़ा लेता. नाउ फाइनली 2x raised to 1 है, यू आर गोइंग टू प्ले n+1 0 to 2. आपका एक कट हो गया. अभी आप दो डिब्बे बनाओगे, दूल्हे को बुलाओगे, दुल्हन को बुलाओगे, आंसर 4. एंड फाइनली द एंड आंसर विल बी a is equal to a1 plus a2. It's going to be 1 plus 4, and that's going to be 5 square units. Check everybody. Now coming back, मैं आपको फिर से ना एक बार डायग्राम समझा दूं. So sum was quite easy. In fact, माने if we are not capable of integrating this thing from wherever to wherever it is, then माने मुझे लगता है, let me be very blunt, थू है हमारी हमें थू है हमारी जिंदगी. माने why are we existing then? कि इतना इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पा रहा. -2 खड़ी है, x² अपॉन 2 हो रही है, n+1 ये जा रही है, अब -1 to 0 जा रही है. तो ठीक है, हमें तो हमारा आता है सिस्टम कैसे वर्क होता है. मंडप सजाएंगे, दूल्हे को बुलाएंगे, दुल्हन को बुलाएंगे, माइनस तो आया, दुल्हन -1 इसमें घुसी के 1 हो गई, तो आंसर 1 होगी. चलो जी, ये भी वापस हो गई. अब मैं आ रहा हूँ डायग्राम पे वापस से, सो दैट इट मेक्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू. I can't say everlasting impact on you. How can that be possible? तेरे लाइफ में कितनी सारी खूबसूरत चीजें होने बाकी है, दूसरी गर्लफ्रेंड आनी बाकी है, मल्टीपल अफेयर्स करने बाकी है, शादी के बाद भी तू ये सब कर रहा है, उसमें से निकलने के लिए मैथ्स का यूज कर रहा है, टू मैनिपुलेट द थिंग्स टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी. भगवान कहते हैं जस्टिफाई. सबको खुशी तो रखना था ना, बस मन पे काबू नहीं रहा. आओ जी चलते हैं. Sorry for the off talks, but how can the people, Mane, we are just talking with each other for hours and hours and hours. I think so. We are just right now finishing off almost 10 hours ka long journey, or maybe 8 to 9 hours ka long journey without speaking anything. And that seems to be so emotionless journey out over here. So मैंने ऐसे ही मन की बातें थोड़ी सी बोल दी. तो y is equal to -2x था, x equal to -1 था, x equal to 2 था, and x एक्सिस था. माने हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस 4 थिंग्स फाइंड करना था. तो मेरे को है ना थोड़ा सा शंका हुआ कि यार वो y भी -2x और x भी -1 है, कहीं साला डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो नीचे जा रहा है.
तो मैंने ना पहले सिस्टम बना दिया ऐसा। अब सबसे पहले वो लाइन ड्रॉ करना था y इक्वल टू एम एक्स और उसका स्लोप नेगेटिव था। सर लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो ओरिजिन से जा रहा है? मुझे लगता है तेरा स्ट्रेट लाइन पूरा ही खत्म हो गया है। सी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c नहीं है दैट मीन्स द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी भी आपको शक है ना, 0,0 इस इक्वेशन में डाल के देखो, it's satisfying both sides. That means the line is passing through 0,0. No, only then the point will satisfy the equation. अब लाइन ऐसी क्यों गई? क्योंकि स्लोप नेगेटिव था। तो मैं वापस याद दिला दूं, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, एक था आपका x इक्वल टू -1, दूसरा था आपका x इक्वल टू 2 एंड यू वर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द नो लाइंस। आई एम सो सॉरी, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू एंड द x एक्सिस। ओके, हमारी चार चीज से बाउंडेड ये एरिया फाइंड करना था। तभी मैं समझ गया साला बच गया मैं। सर क्या बच गया? मैं तो जा रहा था दौड़ लगाने a इज इंटीग्रेट -1 to 2 द y dx। उसमें थोड़ा एरिया पॉजिटिव है, बाकी एरिया नेगेटिव है। साला उन लोग आपस में अंदर ही अंदर मारा मारी करते, कट छट के मेरे पास नो झट्टू एरिया आता और मुझे पता भी नहीं चलता कि उन लोग मारा मारी कर दिया, बिकॉज आई वॉज नेवर थिंकिंग अबाउट द डायग्राम। आई वॉज एकदम फ्लैम्बॉयंट थॉट्स में, चार चीज दे दिया है, 4 मार्क दे रहे, फ्री में हो गया, फ्री में। और बाहर आके बिंगे बल्ले बल्ले कर रहे फ्रेंडों के साथ, और फ्रेंड भी हम जैसा ही था, और बल्ले बल्ले हो गया ना, कल्ले हो गए इसमें तो। The chart is very clear right now. The chart of action is very clear. We go -1 to 0, we hit the A1. We go 0 to 2, we hit A2. But that time, the word of caution. हम सबको दिख रहा है कि A2 area is going below the no x-axis. It's going to be negative. तो आओ चलो वहां की चर्चा कर लेते हैं before we just put it off. Okay. जब आप A2 करने जा रहे थे, नो तो आपने बोला था A2 is integrate A to B, तो माने 0 to 2 y dx। तो आप इंटीग्रेट 0 to 2 -2x dx ला रहे थे और आपने मॉड रखा हुआ था बिकॉज आपको दिख रहा था कि वो एरिया नेगेटिव है। सो आपने प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे के रखा था, एडवांस प्लानिंग। लेकिन आपका मन नो गुज्जू ना से, लेकिन वो मन में वो बोलते ना, अरे यार ये डंडा पूरा समय बनाते बैठना पड़ेगा यार। एक तो इंटीग्रेशन का सम ऑलरेडी इरिटेटिंग, उसमें ऑलरेडी एक माइनस है और फिर एक दो डंडा है। ओ माय गॉड, एक माइनस है और दो डंडा है, फिर भी तुमने क्लिक नहीं हुआ कि यू कैन गेट रिड ऑफ डंडा, यू कैन एक्टिवेट योर मॉडुलस राइट नाउ एंड ईट अवे द माइनस साइन। सो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सीधा 2x dx फ्रॉम 0 to 2 और आपने मॉड खा लिया, मॉड आपने यूज कर लिया माइनस को खाने में। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, July 22 true false, area of the portion lying above the x axis is positive। it's true। अब पूछेगी एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, ट्रू। जुलाई 23 फिल द ब्लैंक्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। बोलो कितने भले लोग हैं, ये भी बोलते हैं कि ये सर्कल है। ओके, मुझे पता चला कि सर्कल है वो x² + y² इक्वल टू 25 एंड आई न्यू के सर्कल है बिकॉज द साउंड इज मैचिंग विद x² + y² इक्वल टू r²। अब बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल ढूंढो। अब एरिया ऑफ सर्कल बचपन से मैं तो πr² लिख रहा हूँ और r² में मुझे 25 दिख रहा है, आंसर हो गया 25 पाई। सर लेकिन यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन था ना, MCQ है ना। सर अगर वो लोग ने 4 मार्क में पूछा तो मैं अभी तक का तुझे बोला। सो वो म्यूचुअल फंड वाला देख, गारंटी है कि 10 साल आपको 10% 12% नो CAGR पे छूटता ही है पैसा, एवरीबॉडी नोज इट, बट स्टिल वो नीचे लिखता है ना, इट्स एट योर रिस्क। मार्केट रिलेटेड है तो इट्स एट योर रिस्क। अब मेरा जस्टिफिकेशन सुन, 9 to 10 अटेम्प्ट हम लोग देख चुके हैं कि ये नहीं आ रहा, माने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इलिप्स उन लोग नहीं पूछते हैं जेन्युइन 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में। नाउ द रीजन फॉर दैट इज व्हाट, आपका सर्कल का इंटीग्रेशन यूज होता है उसमें ये फॉर्मूला, आपका a² - x² का फॉर्मूला यूज होता है, x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a।
Now that's the issue. In the classroom, now few of them who are attending from my batches, they knew it कि हमने ये किया हुआ है, उसमें उन्होंने पैसे भी लिए हुए मुझसे. माने उन्होंने लिए, माने उन्होंने जीते हैं सब चीज. हमने भर भर के किया हुआ है 4-4 5-5 सम सर्कल का. मगर दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड देम कि एमसीक्यू में आया तो सीधा मैं तो कट शॉट मार देता है, और एमसीक्यू में ही आना है इससे. इट्स माई वर्ड, इट्स नॉट दैट कि मैंने ये पत्थर पे लिख दिया कि ऐसा होना है. बट एक लॉजिकल है कि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए दिस इज नॉट इन द सिलेबस फॉर्मूला, सो दैट मींस दे हैव टू प्रोवाइड यू दिस फॉर्मूला. तो वो लोग बोलेंगे जान देना भाई, इतने सारे पैराबोला है उसी में से पूछते हैं. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इट फॉर दिस मेनी सेशंस, दिस मेनी टाइम अटेम्प्ट्स जो हुए. 8 से 9 अटेम्प्ट हो गए, 10 अटेम्प्ट्स हो गए, सॉरी, यू आर गोइंग फॉर द 11th वन नाउ. सो इतने अटेम्प्ट्स के बाद उनको एक बार भी सर्कल के एलिप्स नहीं मिल रहा है पूछने के लिए, जबकि टेक्स्ट बुक में है, बट इट्स यूजिंग दिस फॉर्मूला which is not there in the syllabus, and that is why they'll have to provide you the formula. या तो फिर आप ये याद करके जाओ. मैं I am comfortable with this. But all said and done, if you at all have done it, you should do it. 1 or 2 sums एक बार रेडी करके रख देना चाहिए. तूफान आने से पहले आगाज भी नहीं देता कि मैं आ रहा हूँ. तो now coming back over here, सेकेंड वाला तो और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49. इसका एरिया क्या है? मगर ये कौन है? इट्स अ सर्कल. कैसे पता चला इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर? तो फिर आर स्क्वायर भी पता चला, और स्कूल भी गया था, तो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर पता होगा. आर स्क्वायर का 49 आ रहा है, 49 पाई स्क्वायर इंट्स हो गया आपका सर्कल का एरिया. नाउ इलिप्स. सो लेट मी ड्रॉ द इलिप्स फॉर यू. So that's your ellipse. So that's your A, that's your B. And the equation of ellipse happens to go x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. जिस तरह आपको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पता है, वैसे मुझे पता है कि इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है. कैन आई रिपीट दैट? मैंने हमने तो वर्कआउट करके भी देख लिया है इंटीग्रेशन के टाइम ये सब, मगर अभी इस सेशन में जिस तरह आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, वैसे आपके इस बड़े भैया को पता है, प्लीज डोंट कॉल मी भैया, आपके इस बड़े भैया को पता है कि एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है. और ए और बी तो मिल रहा है मुझे. देखो अभी यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रही थी 9, यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रही है 16, और एरिया ऑफ एलिप्स मेरा पाई ए बी होता है. माने ए में आपकी 3 आ रही है और बी में आपकी 4 आ रही है. मैं तो यहाँ 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स लिख भी दिया. और फिर से कोई एक बार और देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1. इट्स अ इलिप्स जिसका ए स्क्वायर 9 दिखता है, बी स्क्वायर 25 दिखता है. एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है. जिस तरह आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर, मुझे पता है एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होती है. सो फाइनली पाई ए में आपकी 3 आती, दैट्स ए स्क्वायर. बी में आपकी 5 आती, दैट्स बी स्क्वायर. सो आगे आपका आंसर हो जाती 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स. यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है. वाह, वी आर सो लकी. इस बार क्वाइट इन एडवांस हो गई खत्म. सो ये आपका एरिया अंडर द कर्व खत्म होता है. सो आई हैव गॉट गुड टाइम. सो कमिंग बैक ओवर हियर, नमस्कार सभी को वापस से. हम चल रहे हैं वापस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे. ये टॉपिक नंबर है आपका 6 एंड इट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लेकिन उसके काफी सम्स हमने वहां देख लिए थे इंटीग्रेशन में, बिकॉज वो कनेक्टेड थे. ये प्रॉपर्टी बेस्ड सम है. So this here we are discussing only property based के sums. So let's enjoy this. And one question compulsory all the time. And again this is take for free है. कभी 3 marks, कभी 4 marks. You can check the number of times it has no asked. It has not. And treatment एक ही है उसका. तो आओ चलो हम पहले प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं. एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है. Integrate a to b y dx. Sorry. Integrate a to b fx dx. If you wish, you can change your x to a plus b minus x. And the wonderful part about that is the answer still remains the same. That's the property. माने अगर आपको मैं क्विक वापस से बता दूं, आपको अगर यकीन करवाना है, which is a wonderful part. एक बार यकीन हो जाता है तो you start falling in love with this property. And once you fall in love with this property, you happen to use it then. So now coming back, they are saying कि you can change your x to a plus b minus x, and still the answer will remain the same. तो ये मुझे अजीब लगा. Still answer will remain the same. तो मैंने काम किया
हमने क्या ना एक सिंपल फंक्शन x लिया टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 1 to 2, तो पहले मैंने इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 n+1 गोइंग फ्रॉम 1 to 2, फिर डिब्बा डिब्बा कर लिया, दूल्हे को बुला लिया, दुल्हन को बुला लिया, आंसर 3/2 हो गया। अब अचानक मुझे प्रॉपर्टी याद आ रही है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? यू कैन चेंज योर x टू a प्लस बी माइनस एक्स, माने 3 माइनस एक्स। ये समझना है, यू कैन चेंज योर x टू a प्लस बी माइनस एक्स, माने 3 माइनस एक्स। तो मैं बोला चल कर तो दिया मैंने, चल अब इसे सॉल्व करते। 3 के आगे 1 है, 1 का x है, कल ये सब बातें हो रही थी। x के माथे 1 है तो n+1 है, गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 2। डिब्बे थोड़े बड़े बनाए, माने आपका वो मंच थोड़ा बड़ा बनेगा। नाउ दूल्हे को बुलाए, 6 - 4/2, चेक प्लीज 2 आया था। दुल्हन को बुलाए, 3 - 1/2, फाइनली 6 - 2 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 - 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 5/2। तब तक में ये हो गया आपका 4 - 5/2, तब के वापस 8 - 5/2 हो गया आपका 3/2। सच्ची तो बोला, आंसर सेम आया था। So now let's cut it short. You can change your x to a plus b minus x. चलो प्रैक्टिस। इंटीग्रेट 1 to 2 है, you can change your x to 3 minus x. इंटीग्रेट 2 to 3 है, you can change your x to 5 minus x. सर वो फटाफट आप कैसे बोलते हो, मेरे मन में वो धुन बैठा ना। You can change your x to a plus b minus x. हम लोग क्लास में ऐसा गलत करते थे, दिल करे तो x को a plus b minus x करे, दिल करे तो x को a plus b minus x करे। I am pressing hard. Nobody of you should leave this part because this is so cash rich. माने इंटीग्रेशन ओनली फॉर नेम सेक। जस्ट इमेजिन अगर आपने पूरे सम में इंटीग्रेशन खाली 1 का किया और आपको किसी ने 4 मार्क दे दिया। टॉपिक विच वॉज नाइटमेयर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट SY वर्ल्ड। अरे इंटीग्रेशन यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन यार कोई भी अचानक एक सम देगा तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइन, and somebody is ready to give you 4 marks for integrating only 1 x. How can I leave that session? So we are पहले practicing ताकि हमें सम में कोई खर्चा ना लग जाए, माने पूरा एक सम समझने में। इसलिए मैंने आपको वो डबल पैराबोला वाला का एक सम पहले बताया ताकि अटेम्प्ट का सम मेरा वेस्ट ना हो जाए। कॉमा तुझे भी प्रैक्टिस में वैसे 2 सम तो मिनिमम चाहिए। नाउ मैं वापस शुरू किया। यू कैन चेंज योर x टू 3, मैंने अभी गाना ऐसे गाएंगे, दिल करे तो x को 3 माइनस एक्स करे, a प्लस बी माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को 5 माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को 7 माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को 6 माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को 9 माइनस एक्स करे, a प्लस बी माइनस एक्स करे। चल फिर से एक बार, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 5 माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 7 माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 9 माइनस एक्स करे। नाउ बहुत दिल हो गया, आओ सम करे। नाउ दैट्स योर फर्स्ट सम। चलो मैंने यहाँ 1 बोला, ओके एवरीबॉडी रेडी। मैंने प्रॉपर्टी बाजू में लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, दिल करे तो x को 12 माइनस एक्स करे, तो फिर 12 माइनस एक्स को x करे। अभी तो आपको मैंने फिट किया था, दिल करे तो x को 12 माइनस एक्स करे। सो वन हू सीज द प्रॉपर्टी दिस वे, नो इंटीग्रेट a टू, फिर वो भी आपको प्रॉपर्टी भी लिखना होता है। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, माने few those who are too much strict in watching everything, every minute thing and listening to every minute word. वो बोला दिल करे तो x को 12 माइनस एक्स करे, ये साला उल्टा एरो कैसे बनाया उसने। देख जब गाना ऐसा जाता है तो लोग ऐसा गाते, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे। जब कोई गाना ऐसा गाएगा तो ऐसा गाता है, दिल करे तो a प्लस बी माइनस एक्स को x करे।
तो x को 12 माइनस एक्स करे, 12 माइनस एक्स को x करे। आओ चलो अब करे। सो इंटीग्रेट 3 to 9 क्यूब रूट ऑफ 12 माइनस एक्स को x करे, क्यूब रूट ऑफ x को 12 माइनस एक्स करे। लिख के रखा हुआ है मैंने, वहां पे लिख के रखा है। क्यूब रूट ऑफ 12 माइनस एक्स को x करे, x को 12 माइनस एक्स करे, 12 माइनस एक्स को x करे। माँ को ना भूले 2 और I को ना भूले, because that signifies the importance of the property. You have claimed that the first का answer is I. So even after changing your x to a plus b minus x, the next का answer also has to be I. That's what the property had told you. और हमने भी देखा दोनों का आंसर 3/2 आया था. So that's the whole property. बाकी तो चेंज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. कल वो अनमास्क करने के लिए log x को t कर दिया, x क्यूब को t कर दिया, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं. प्रॉपर्टी का फाइनल बात क्या था? ये करने के बाद भी आंसर सेम रहेगा. माने इफ यू आर क्लेमिंग के फर्स्ट आंसर इज आई, इवन दिस का आंसर भी आई. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ऐड किया दोनों को 2i. चलो नाउ लेट मी कीप इन फ्रंट ऑफ यू दोनों आइस. पहले ये हटा दूं, ये हटा दूं. ओके नाउ जब मैं 1 और 2 ऐड किया तो i और i 2i हो गया. इंटीग्रेशन भी कॉमन था तो 3 to 9 हो गया. डिनोमिनेटर भी कॉमन है. डोंट गो बाय माय वर्ड्स, प्लीज चेक फॉर योरसेल्फ. द डिनोमिनेटर वाज सेम फॉर बोथ. जब डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, यू आर सपोज टू ऐड द न्यूमरेटर. जब ये छोटी छोटी बातें यार सिखानी पड़े तो क्या अजीब लगता है. डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए तो आपका काम क्या था? ऐड द न्यूमरेटर. सो आवर वर्क इज टू ऐड द न्यूमरेटर. सो क्यूब रूट एक्स प्लस क्यूब रूट 12 माइनस एक्स. रब रखा, कट हो गया, सम कटा नहीं, टर्म कट हो गया. और नाउ यू आर सपोज टू इंटीग्रेट ओनली 1. और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, विच इज गोइंग फ्रॉम 3 to 9 एंड दैट्स योर 2i. फिर डिब्बा डिब्बा खेला तूने 9 minus 3. चेक प्लीज, दैट्स 2i. तो फाइनली i हो गया आपका 6/2. आई होप कोई सुन रहा है. आंसर हो गई आपकी 3. नाउ देयर लाइज योर शॉर्टकट. एमसीक्यू में भी ये सम आता है. देयर लाइज योर शॉर्टकट. हर बार यही होगा. मैंने हर बार तेरा आंसर होगा b माइनस ए. अपर डिब्बा लोअर डिब्बा. हर बार 1 होगा, 1 का एंटी x होगा, डिब्बा डिब्बा होगा, पहले b आएगा फिर a आएगा और बाद में डिवाइड बाय 2 आएगा. सर क्यों? 2i था ना ये तो. सो शील बी योर शॉर्टकट. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर इनटू द नेक्स्ट वन. देख जुलाई 22 में 3 मार्क का या 4 मार्क का सम था. फेब 25 में एमसीक्यू में आ गए तो वापस थोड़ी इतना स्टेप करेगा. इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट, लेकिन बाद में डिस्कशन. चलो पहले हम हमारा गाना गा लें. दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 9 माइनस एक्स करे. तब मेरी नजर 2 to 7 चली गई थी. दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 9 माइनस एक्स करे, 9 माइनस एक्स को x करे. नाउ मैंने शुरू किया करे, माने करो. तो रूट ऑफ x को 9 माइनस एक्स करे, x को 9 माइनस एक्स करे, 9 माइनस एक्स को x करे. माँ को ना भूले. और ये भी आंसर आया होगा बिकॉज प्रॉपर्टी बोला था. कौन सा? बाजू में लिखा तो है ही नहीं, सो हम बाजू में लिख देंगे यूजिंग. चलो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम कैसे दिखता है? a to b fx dx. ऐसा ही दिखता है. और गाना क्या था? दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे और फिर भी आंसर सेम रहे. सो आप x को a प्लस बी, माने गाने को यूज कर लो आप अपना प्रॉपर्टी लिखने के लिए. चेक. नाउ आगे बढ़े. 2i करे बिकॉज 1 and 2 ऐड करें. इंटी कॉमन है 2 to 7. डिनोमिनेटर भी कॉमन है रूट एक्स प्लस. मेरे वर्ड्स पे नहीं जाने का, देख लेने का. डिनोमिनेटर कॉमन. सो योर ड्यूटी इज ओनली टू ऐड द न्यूमरेटर्स. नाउ आई एम ऑन इट. और माँ को ना भूले. काटे 1 बोले. सो संस्कारी चले. 2 मार्क चाहिए, 3 मार्क चाहिए. 1 dx. 1 की इंटी एक्स हो गई. 2 to 7 2i चल रही है. फिर डिब्बा माइनस डिब्बा करे, 7 माइनस 2 करे. मैं तो बोला था शॉर्टकट क्या है? b माइनस ए. बट दैट इज 2i. सो फाइनली i इज गोइंग 5/2. माने शॉर्टकट था आपका b माइनस a/2. माने जब फेब 25 में एमसीक्यू में सम आया, मैं तो खाली ये देखा 7 माइनस 2/2 5/2 देखा, ऑप्शन देखा, टिक करके आ गया. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन. चलते रहे प्लीज, सावधान, कैजुअल ना हो.
रास्ता खुला है, थोड़ा मस्त में ऐसे नो रिक्लाइन पे चले गए। नाउ कमिंग बैक, देखते हैं नेक्स्ट सम में कुछ डाउट होगी तो क्लियर हो जानी चाहिए। आओ जी, गाना पहले सेट कर लेते हैं। ये आई उन्होंने नहीं दिया होता है, आई एम क्लेमिंग के दिस आंसर इज आई, सो दैट आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी आई कैन से अगेन द आंसर ऑफ दैट आल्सो हैज टू बी आई। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 4 माइनस एक्स करे। दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, दिखा ना 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स करे। सर क्या हो गया, उल्टा नहीं किया, दिल करे तो x को 4 माइनस एक्स करे, 4 माइनस एक्स को x करे। तेरे सब में 4 माइनस एक्स है ही नहीं ना, तो फिर ऐसा फालतू गाना गाना भी। आओ चलो हम हमारा नेक्स्ट टाइप बनाते हैं। 1 2 3 सावधानी से बनाना होगा। x को 4 माइनस एक्स करे, ओके ठीक है, आराम से। x को 4 माइनस एक्स करे, प्लीज चेक। हर x पे पहुंचने पे गादी गा रहा हूं मैं। x को 4 माइनस एक्स करे। सर जी 4 माइनस एक्स बोल के चीटिंग किया आपने। नहीं, वो x को 4 माइनस एक्स करे, लेकिन यहाँ पे था माइनस जो घुस गया। नाउ माँ को ना भूले, चल आगे चले। द आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 2 3 क्यूब रूट, सेटल करे 9 माइनस एक्स करे, सेटल करे 9 माइनस एक्स करे, सेटल करे 5 प्लस एक्स करे, x प्लस 5 करे, क्योंकि कंपोजिशन x प्लस 5 है, माने धुन x प्लस 5 के, तो 5 प्लस एक्स क्यों लिखे। नाउ एडिंग 1 and 2, तो she was your 1, she is going to become your 2. Now let's go for 2i. It's integrate 1 2 3, कॉमन इंटीग्रेशन है, अभी थोड़ा नाचना पड़ेगा। आपका फर्स्ट आई का डिनोमिनेटर देखो, क्यूब रूट एक्स प्लस 5 क्यूब रूट 9 माइनस एक्स। अभी भी देखो क्यूब रूट एक्स प्लस 5 क्यूब रूट 9 माइनस एक्स। सो क्यूब रूट एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट 9 माइनस एक्स कॉमन डिनोमिनेटर। सो इंटी कॉमन था, लिमिट्स कॉमन था, डिनोमिनेटर कॉमन था। तो अब तुझे क्या करना है, एट द न्यूमरेटर। ऊपर का न्यूमरेटर क्या है, क्यूब रूट एक्स प्लस 5, और यहाँ का न्यूमरेटर तो दिख ही रहा है आपको, क्यूब रूट 9 माइनस एक्स, तो दे गॉट एडेड। और मान ना भूले, फिर से बाद में समाधान तो वही हुआ। सो 2i इज गोइंग इंटीग्रेट 1 2 3 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया टू बी टेकन फ्रॉम 1 2 3, दैट्स योर 2i। सो फाइनली हम करेंगे डिब्बा माइनस डिब्बा, दुल्ला आया दुल्हन आई। मुझे b माइनस ए तो दिख ही रहा है, और बाद में डिवाइड बाय 2 बिकॉज दैट वाज योर i। सो 2/2 आंसर हो गया आपका 1। बस मेरा एक मार्क खतरे में, और वो पक्का है कि खतरे में, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लिखा नहीं है। सो इंटीग्रेट a टू b fx dx। ये स्टैंडर्ड कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम दिखने में कैसे होता है, यू आर इंटीग्रेटिंग बिटवीन a टू b, एंड किसको इंटीग्रेट करते, कोई तो एक फंक्शन मा dx। नाउ गाना क्या था, यू कैन चेंज, नहीं दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, चेक प्लीज। नाउ फुल मार्क्स मेरे को मिलना चाहिए था। क्विक वापस से करते हैं हम लोग ये सम। चल नाउ नेक्स्ट, जुलाई 25, ऑलमोस्ट डन यार। अब ऑड इवन फंक्शन की बात करेंगे, होप कि मैं ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दे रहा हूं। नाउ दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 5 माइनस एक्स करे, तब तेरा ना नजर वो a और b में होना चाहिए। दिल करे x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, मेरे को क्यों देख रहा था, a b को देखना चाहिए था ना। चलो वापस गा रहे हैं। दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, 5 माइनस एक्स करे, मेरा मन करता है 5 माइनस एक्स को x करे, दुनिया हंसेगी कितने 5 माइनस एक्स कितने के x करे, तो चुपचाप x को 5 माइनस एक्स करे, ओके। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 4। हाँ वो व्हाट ग्राउंड्स पे तुम इसको i बोल रहे, प्रॉपर्टी बोला था। अगर उसका आंसर आई है तो इसका भी आंसर आफ्टर चेंजिंग x टू 5 माइनस एक्स, उसका भी आंसर आई हो। मैं बोला जय माता दी। क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स करे, ओके सावधानी से, सॉफ्ट हैंड्स। x को 5 माइनस एक्स करे, अगेन प्लस क्यूब रूट ऑफ, अभी आराम से आ जा,
x को 5 माइनस एक्स करे, अब सवाल नहीं पूछना प्लस कैसे हो गया, वो माइनस घुसा ना, और माँ को ना बोले। अब सेटल करे, 1 to 4 करे, क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स करे, टेक योर टाइम, 5 plus 6, नीचे भी क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स करे, 5 plus 6, क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस 5 6 plus x, मगर हमारा धुन था x plus 6, तो हम धुन को ना बिगाड़े, even if you write 6 plus x, no problem in that. Now that is your 2 and the first one was 1. I am heading for 2i, I am heading for 1 and 2 का addition. इंटी कॉमन था 1 to 4, डिनोमिनेटर अभी आप मान लो कि कॉमन था, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो देख लो। क्वेश्चन 1 का डिनोमिनेटर क्यूब रूट एक्स प्लस 6 प्लस क्यूब रूट 11 माइनस एक्स, इसका भी क्यूब रूट एक्स प्लस 6 प्लस क्यूब रूट 11 minus x. Check. So denominator is going common. So now what is your duty? Add the numerators. Cube root x plus 6. और अभी का तो दिख ही रहा है मुझे न्यूमरेटर क्या है, क्यूब रूट 11 minus x. और बार आपका dx कट हो गया, हर्ष आपका सेम हुआ, 1 का इंटी x हो गया, फ्रॉम 1 to 4. सॉरी फॉर ईटिंग 1 स्टेप. अभी आपका आएगा डिब्बा डिब्बा, दुल्ला आ जाएगा, 4 दुल्हन आ जाएगी, मुझे तो अभी भी b माइनस ए शॉर्टकट दिखा था. I is equal to 3 by 2. The shortcut is b minus a the by 2. The by 2. Now, ये मेरी इच्छा टेक्स्ट बुक क्या है कि दिस हैज बिकम वेरी कॉमन. अभी आप देख रहे हो सालों साल उन लोग ने, देखो ना, जस्ट चेक इट दैट. जुलाई 25 यहाँ तो लड़ी लगी है, यहाँ पे भी उन्होंने लड़ी लगा दी है. तो आई जस्ट फेल्ट के व्हाई इज दिस स्किप्ड आउट मैन ऑल द टाइम. शायद वो लोग तेरा वेट कर रहे थे, एक अच्छा बैच आएगा, एक अच्छा बैच आएगा जो एंड मोमेंट पे भी एलएमआर सेशंस अपने टाइट स्केड्यूल में भी स्क्वीज करके देख रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट. तो चलो हम करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे कन्फेस कर लूं कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा ऐसा मुझे समझ में नहीं आया था. सी ये सब सम्स मैंने इतनी बार फ्लैश होते हुए देख लिया है ना कि मुझे ऐसा दिख जाता है दिस इज दैट प्रॉपर्टी बेस्ड सम. दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, और एक बार गाना चालू हो गया, वन साइड वन सम आई एम एबल ऑफ डूइंग n नंबर ऑफ सम्स एंड आई एंजॉय डूइंग. फ्री 4 मार्क्स मिल रहे हैं ना मेरे को. उधर 1 मार्क गया अपना, प्रॉपर्टी नहीं लिखा हमने, बट नाउ वी हैव जस्ट चेक्ड इट. हम इधर वापस एक बार लिखेंगे. मुझे ईमानदारी से यहाँ कुछ है ना, मुझे ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्टी वाला सम में. दिस इज जस्ट सो डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी राइट नाउ व्हाट यू आर लुकिंग इनटू. फिर मैं खुद को बोला अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है माने इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व में तो मेरे को खाली इतना ही आता है. इफ आई वाज गुड विद इंटीग्रेशन, खाली log x है तो मैं एक 1 डालेगा और वो फर्स्ट इंटी सेकंड माइनस बिग इंटी डेरी ऑफ फर्स्ट इंटी ऑफ सेकंड dx करके गा सकता हूँ. ये तुसी कौन हो भाई? तो मैं बोला यार ये कुछ गड़बड़ है, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड. सो देन आई वाज ऑलमोस्ट डैम श्योर कि ये प्रॉपर्टी होगा. फिर मैं थोड़ा है ना आगे गया इसमें ऐसे ही, क्योंकि आई वाज नॉट सो क्लियर अबाउट इट. मैं बोला जरा घुमा के तो देखो. ओ माय गॉड, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे, और वो वहां दिख रहा है, चेक प्लीज. और 1 माइनस एक्स को x करे, वो भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, 1 माइनस एक्स भी दिख रहा है. अब मेरे को मालूम था सम होए ना होए प्रॉपर्टी का ही सम था ये. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये मेरा फर्स्ट आई हो गया, ठीक है. Now, after applying the property, मैंने after creating the song, दिल करे तो x को a plus b minus x करे, 1 minus x करे, 1 minus x को x करे. तो आओ करे. तो I is equal to integrate 0 to 1 log 1 minus x को x करे, x को 1 minus x करे, और यहाँ पे 2 लिखे. फिर प्रथा के हिसाब से 1 और 2 जब ऐड होता है तो 2i करे, इंटी कॉमन है 0 to 1 करे. अब इसमें कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, एक ही टर्म है, ऊपर लॉग है नीचे लॉग भी, तो ऐड करे. आपने ऐड बोला है ना तो करना तो पड़ेगा. सो ऐड करे. चलो भाई ऐड भी हो गई और dx भी आ गई. नाउ जब ये log a प्लस log b देखा तो मुझे मेरा वो रूल याद आ गया, log a माइनस log b log ऑफ a अपॉन b.
log a plus log b log ab हो जाता है. So can I just write it over here? ये बहुत फ्रीक्वेंट था तो ये सबको ही मालूम होता है. बिलीव मी, माने ये एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल बिकॉज ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग सेक्शन 1 पेपर 1 आपका सिलेबस में log a plus log b n नंबर ऑफ टाइम्स यूज हुआ था. log of a upon b. लेकिन साला log a plus log b ना हार्डली कभी यूज हुआ है. तो प्लीज नोट इट डाउन. इट्स log of ab. माने एक तो खुशखबरी है कि log हो जाएगा, एक log, और ab करना है. सो 1 minus x into x. ओ माय गॉड, तुसी कहाँ जा रहे हो? So 2i is equal to integrate 0 to 1 log of 1. Oh my god. सर ये आज माय गॉड बहुत चल रहा है. ये जो यार कल जिसने अपने लिए खुद के लिए भला सोचा होगा उसको आज कितनी जगह अच्छा फायदा हो रहा है. log 1 0 है माने पूरा सम ही क्रैश हो गया. पूरा सम ही क्रैश हो गया. इट्स गोइंग टू गो 0. सो i हैज गॉन 0. कोई शॉर्टकट है ही नहीं. फंक्शन ही नहीं रहा तुम्हारा. log 1 0 हो गया. सो टेक्निकली द आंसर हैज गॉन 0. 2i 0, i इज इक्वल टू 0. बस इस बार हम मिस नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी लिखना जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था. सो विल राइट ओवर हियर यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी. सो इट्स इंटीग्रेट a to b fx dx. तो मैं क्या बोला था आपको, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम बिटवीन टू लिमिट्स जब आप इंटीग्रेट करते हो तो दिखता कैसे, इंटीग्रेट a to b. और आप किसी को तो इंटीग्रेट कर रहे होगे ना, कोई फंक्शन को, dx. ना गाना क्या था, दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे. तो करे ना, वही गाने से एक प्रॉपर्टी को कंप्लीट करे. दिल करे तो x को a प्लस बी माइनस एक्स करे और एंजॉय करे. नाउ अब आ रहा है हमारा ऑड इवन फंक्शन का कहानी. So I'll just, this is the last 5 to 7 minutes. So if at all mane you have good time with you, 5-7 minutes for yourself, please stay invested. MCQ माने direct. मगर वो कहते हैं ना यार, माने if at all you are foundation kid, you should be too good for all these things. माने मैं खाली वो रिक्शा में मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला देख ऐसा आया तो ऐसा करना, मैं वो रिक्शा से उतर जाऊंगा. Man, I can't live my life with this kind of, no, I'm walking with a hook. साला वो हुक गया, मैं गया. ना ट्रेन में एक आध दो स्टेशन लटक रहा हूँ ठीक है यार, पूरी जर्नी लटकनी पड़े तो चढ़नी नहीं है वो ट्रेन में मुझे, रुक जाऊंगा आराम से. ना चलते हैं ऑड इवन फंक्शन. प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो बोलती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स से, माने यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स. माने दिस प्रॉपर्टी एप्लीकेशन का आइडेंटिफिकेशन क्विक नोटिफिकेशन देखना, माइनस ए टू ए. माने जब भी ये माइनस ए टू ए आ जाएगा तो आपको सीधा माने आंसर या तो 0 या तो ट्वाइस इंटीग्रेट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो कोई इग्नोर ना करे सेकंड वाले को, बिकॉज बहुत लोग प्यार कर लेते पहले वाले से. एमसीक्यू में दे कैन गो फर्स्ट, दे कैन गो सेकंड आल्सो. नाउ 0 कब होता है, जब फंक्शन ऑड होता है, और ये कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है. मैं ऐसे कोई क्लास में जाऊं नहीं जहां उन्होंने ये बोल के मुझे बोला बच्चा समझ गए, फंक्शन ऑड होता है तो ये करे, फंक्शन इवन होता है तो ये करे. मैं यहाँ पे फिर से सबको राय में मैं बता दूं कि आप जो चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं, दिस इज माय सबमिशन, एंड नीचे कैप्शन में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपकी रिस्क पे है, मगर हम सब जानते हैं कि ओवर अ लॉन्ग रन इट गिव्स यू गुड बेनिफिट्स. सो ये है वो मुझे भी पता है, मैं फुल कोर्स भी तो कराता हूँ ना, सो मुझे भी मालूम है. सो डोंट फील बैड, बट नो माने यू आर नोटिफाइंग मी इन द के प्रॉपर्टी ये भी है वो भी है. ऑफ कोर्स सिलेबस में तो बहुत कुछ है, एलएमआर सेशन है ये, लास्ट मिनट रिवीजन. सो लास्ट मिनट रिवीजन वी आर ट्राइंग टू कैच अप विद द सम्स व्हाट दे एंजॉय आस्किंग यू, एंड बोर्ड्स इज अ सेट ऑफ रिपीट क्वेश्चंस. बट स्टिल नीचे कैप्शन में एक रन कर रहे हैं हम लोग नो लाइन के हम ये सब सही है लेकिन still you need to put in something more, which I have been saying from the first lecture onwards. So please don't get me wrong, but अभी देखो मेरा ध्यान हट गया, वो लय टूट जाता है. लय समझते, फ्लो 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 या फ्लो, फ्लो टूटा, कंसेप्ट टूटा, याद ही नहीं रहा, बेकार गया ये चीज, ऐसा हो जाता है. सर रिकॉर्ड हो रही, हाँ बॉबी कुछ ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना.
आओ जी। अब सबसे पहले ये प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें ऑड इवन फंक्शन समझना होगा, तो आओ चलो ऑड इवन फंक्शन समझते हैं। मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूँ, वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स। आप है ना एक्स को माइनस एक्स करें, आप एक्स को माइनस एक्स करें, इफ यू लैंड टू माइनस एफ एक्स, देन द फंक्शन इज गोइंग ऑड, देन द फंक्शन इज ऑड। माने आपने एक्स को माइनस एक्स किया, वाई हो गया आपका माइनस वाई। आपने एक्स को माइनस एक्स किया, वाई हो गया माइनस वाई। चलो वापस सुने, मैंने आपको एक फंक्शन देना है वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स, आपने एक्स को माइनस एक्स करना है, आपने एक्स को माइनस एक्स करना है। एंड इफ यू कम डाउन टू माइनस एफ एक्स, माने यू कम डाउन टू माइनस वाई। कब? व्हेन यू चेंज योर एक्स टू माइनस एक्स, द वाई हैज गॉन माइनस वाई, द फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। दिखने में वो कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। चलो अभी आ जाओ जल्दी जल्दी, दिखने में कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। ओके, ऑड फंक्शन आपका ऐसा जा रहा है, शी इज योर ऑड फंक्शन। सर आपको कैसे पता चला? बताता हूँ। लेट अस से ये x था, तब ये y था। अब कहानी क्या थी? आप x को माइनस एक्स करेंगे एंड चेक आपका y भी माइनस वाई, और तब आपका फंक्शन ऑड होता है। और अब उसमें चेक दिस, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस ए टू ए, विच यू आर, तब यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दिस एरिया। अभी एरिया अंडर कर्व सीखा ना हम लोग ने। If you are integrating from minus a to any curve, that means you are trying to find that area. पहला एरिया पॉजिटिव, सेकंड एरिया नेगेटिव, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे विल क्रॉस आउट, कट आउट एंड द आंसर बिकम 0। सर मॉड नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ी हम ऐसा करें। वी आर गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम माइनस ए टू ए, माने प्लस एरिया माइनस एरिया। सी ये वाला एरिया आपका नेगेटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव, कर्व इज सिमेट्रिकल, एरियाज विल बी इक्वल। ये माइनस वाई और प्लस वाई आपस में उन लोग ने भाई भाई को खत्म कर दिया, आंसर तेरा 0 आ गया। नाउ लेट्स हिट द सेकंड वन। ओके, मैंने आपको वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स देना है, आपने एक्स को माइनस एक्स करना है। आपने क्या करना है? एक्स को माइनस एक्स करना है। आपने क्या करना है? एक्स को माइनस एक्स करना है। एंड लेट अस से इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स, माने यू कम बैक टू वाई। Even after changing your x to minus x, the y still stayed y. The function is said to be even. Even after changing your x to minus, तो वापस एक बार सुनते हैं। y is some function of x. आपने x को minus x करना है। On solving, let us say come back to fx. Money you came back to y. In spite of changing your x to minus x, your y is still going y. The function is a even function. Now दिखने में कैसा होता है even function? ऐसा होता है even function, parabolic. चला देखते हैं कैसे इवन हो गया। अच्छा मान लो मैंने माने ये आपका फंक्शन, शी इज योर फंक्शन एंड आई एम क्लेमिंग शी इज अ इवन फंक्शन। हाउ? एथो एक्स था, तब वाई ए था ना, आपको बोला गया था आप एक्स को माइनस एक्स करें, तब आपका वाई भी वाई रहा। इवन आफ्टर चेंजिंग योर एक्स टू माइनस एक्स, द वाई स्टिल स्टेइंग वाई। दैट फंक्शन इज नाउ कॉल्ड एज ए इवन फंक्शन। नाउ इसके अंदर कहानी क्या थी? You are integrating your function from minus a to a. That means you are actually trying to find this area under the curve from minus a to a above the x-axis. अब मैंने बोला अपना आर्ग्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, तो फिर एक काम करते ना, इसको काट देते हैं और इस एरिया को डबल कर देते हैं। Now check the property. They are integrating now from 0 to a and doubling symmetry when the function is even. So now let me just sing the full property once again. I hope you all must have enjoyed that. The reasoning. You are integrating from minus a to a function dx. The answer can go two ways, either 0 or twice. क्या था? डबल कर लेंगे उस एरिया का, वो एरिया था 0 to a. Okay, integrate 0 to a, the same function, of course the same curve. This is when the function is odd, this is when the function is even. Odd even कैसे चेक करेंगे? आप x को माइनस x करें, if you come to minus y, the function is odd. If you come back to y, the function is even. आप x को माइनस x करें, अगर y माइनस y हो जाती है, माने y जा रही थी अब y नीचे जा रही है, तो ये नेगेटिव एरिया वो पॉजिटिव एरिया, कट आंसर 0। लेकिन इवन आफ्टर चेंजिंग योर x टू माइनस x, द y स्टिल स्टेड y, दोनों आप ही रहा।
तो फिर वो इवन फंक्शन हो गया। तो इस तरफ का एरिया छोड़ देना, डबल कर दे उस तरफ का एरिया फ्रॉम 0 to a। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, ओके सॉरी, रेडी। एमसीक्यू, ये सारे सम्स एमसीक्यू थे, सॉरी मैं बाजू में लिखना भूल गया। इसका आंसर 0 है कि ट्वाइस 0 to 5 है, वो जानने के लिए ये फंक्शन देखना होगा इवन है कि ऑड है। तो आओ चलो देख लेते हैं। योर y इज गोइंग x रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 10। क्या था प्रथा? चेंज योर, डायग्राम भी बताया था, चेंज योर x टू माइनस एक्स। ओके, सो माइनस ऑफ x रेज टू 7 करेगा तो माइनस सर्वाइव करेगा क्योंकि इवन पावर था, लेकिन यहाँ पे वो x रेज टू 4 हो गया। सर जी क्या था ये? नीचे x रेज टू 4 में मैंने x को माइनस x किया, लेकिन वो माइनस प्लस हो गया क्योंकि इवन पावर 4 था। प्लस 10, अगर आप नहीं समझा तो लेट मी गो मोर डीपर, ओके, एटलीस्ट वन सम। आई एम चेंजिंग माई x टू माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस x कर दिया क्योंकि टेस्ट क्या था, चेंज योर x टू माइनस एक्स। अब ऊपर माइनस सर्वाइव कर गया बिकॉज रेस टू ऑड पावर था, नीचे माइनस मरा क्योंकि रेस टू इवन पावर था। इफ यू सी दैट यू आर बैक टू y बट माइनस y, सो नाउ क्या हुआ, यू चेंज योर x टू माइनस एक्स, द y इज गोइंग माइनस y, माने आपने x को माइनस x किया, आपका y ऊपर जा रहा था, अब नीचे जा रहा है, फंक्शन इज गॉन ऑड, तो आपका आंसर हो गया 0। एमसीक्यू में कहा जस्टिफिकेशन, बट मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन इज ऑड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम, -7 to 7 माने ऑड इवन फंक्शन की कहानी। आओ चलो क्विक करते, द y इज गोइंग x रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 4 माइनस 9। तेरा काम क्या था, हाउ टू परफॉर्म अ टेस्ट ऑफ ऑड इवन फंक्शन, वो डायग्राम याद नहीं, x को माइनस x करो, x को माइनस x करो, x को माइनस x करो, सर का किया माइनस चला गया। सो नाउ व्हेन यू सी दैट यू आर बैक टू माइनस y, so when you change your x to minus x, the y is going minus y, so the function is going odd, and therefore the answer to that is 0. I hope you are understanding that. So that I think so ends the story. I hope it must be a fruitful thing for you. So this is the total coverage of your chapter number, what do you say, 6, but this was sums exclusively based on properties. Now इसके अलावा भी हमने चैप्टर 5 में इंटीग्रेशन बिटवीन द इंटरवल्स देखा हुआ है। ये था मेरी तरफ से आपके लिए the most important stuff what they enjoy asking you, so your focus should be much more on this, your practice should be multiple times on this, and the other coverage should be in a quicker, faster way. So I believe after going through so many papers, so many years, it's a game of repeats. हो सकता है कि ऑफ बीट कुछ पूछा हो, लेकिन the wonderful part of the paper is what, attempt any 2 out of 3 होता है। So I'm pretty sure कि आपका पूरा पेपर इन सब में से बैठना ही है। So my only request is कि do this 2 or 3 times and then jump onto your other stuff which you just do for scribbling purpose. कि मैं तो पूरा कवरेज, बिकॉज म्यूचुअल फंड में नीचे लिखा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी रखा है, आई एम नॉट जस्ट रनिंग बिहाइंड वन फंड। सो इस तरह मैं ये तो अच्छे से करूंगा, बाकी सब भी फटाफट कर लूंगा। सो टिल देन शबा खैर, सी यू in the next lecture. We are going for differential equation. Don't miss out.